I know so many bankers, my seniors and my colleagues, जिन्होंने बहुत सारे properties लिए, किसी में पैसे भी बनाए, किसी में बहुत पैसे भी गवाए, and most of them, believe it or not, are living on rent today. And because of how UAE is progressing, I am now more confident than maybe 15 years ago when I applied for Canadian PR. That UAE is definitely a place where you can retire. I have a very close friend. She went to Canada and she loved it, and she managed everything without her husband. She was the only banker I know from my banking circle who actually ended up at a very good job. बोइंग का स्टॉक $400 पे चला गया था, उसके बाद से रोज जब भी उसके जहाज गिरते हैं वो स्टॉक और नीचे चला जाता है। सो फरिया कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ आर यू? गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे जो इंटरेक्शन हुई थी लोगों को अगर कोई लिंक्डइन पे मुझको फॉलो करता है तो पता होगा कि हमारा एक कोलैबोरेशन हुआ था नेशनल बॉन्ड का और पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई का। उसमें आपसे मुलाकात हुई थी और काफ़ी इंटरेस्टिंग आपकी स्टोरी थी। तो मैंने कहा आपकी स्टोरी लोगों तक पहुँचनी चाहिए क्योंकि आपकी स्टोरी के अंदर मल्टीपल छोटी-छोटी ऐसी स्टोरीज़ हैं जिसमें लोग रेज़ोनेट करेंगे। सो उसके अंदर सबसे पहले तो आप अपना थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन करवा दें क्योंकि लोगों को आप क्योंकि लिंक्डइन पे इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है। मैंने आपको कहा था कि आप थोड़ा-सा एक्टिव हो जाएँ उसके ऊपर। तो थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। Ji, thank you so much. And it was indeed a pleasure to meet you as well at the event. And yes, I am definitely working on being more active on LinkedIn. As far as my introduction goes, I am a UAE born and brought up, a kid. Did my A levels in Abu Dhabi. I was here until that time. Went to IBA. वहाँ से मैंने अपना MBA किया. MBA करके फिर मैं वापस आई यूएई. I worked in Citibank Pakistan also for 4 years, and then I got a good opportunity here in Dubai. And 2006 was a booming time for UAE. I came back and have been in the banking तो आप industry. अकेले गई थी पाकिस्तान? मतलब पेरेंट्स यहीं पर थे आपके? Yes, my अच्छा। parents were here and they're still here actually. My father has been here since 1971. They stayed here. I went alone and I did my ओके। studies, university studies over there. उस वक़्त तो ऐसा कोई था नहीं ऑप्शन कि यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हों। प्रोबब्ली अगर होता तो आपके पेरेंट्स शायद प्रेफ़र करते कि यहीं से आप करें। Yes, for sure, for sure. It was there weren't any good options over here, हुँ। and Pakistan actually had offer much better value as well. Situation in Pakistan was also much टू था better. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इन 2099 No, in 99, तो 99. न्यूक्लियर से भी पहले की बात है ये। Yes, राइट, राइट। उस वक़्त तो सब कुछ ही सही था। it मतलब कोई was a इतना great time in हाँ, Pakistan. It लेकिन was कराची में very. प मसला था उस अनरेस्ट तो था कराची It में। was for a very short time, हुँ, not during the 99 2000 times, but once I started working in 2003, my first job, I remember in 2003, 2004, there was हुँ, some unrest, हुँ, 2005. And that's when people started thinking of going to Dubai. And हुँ, that Dubai Chalo हुँ, 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 sort of campaign started. And not just myself, at least like 60-70% of my college mates, my colleagues, and a lot of bankers from Citibank itself and Standard Chartered, we all just landed in Dubai in हुँ। 2006 7, whether it was Barclays or Standard Chartered, or I came to Mashreq. So there was a bit exodus from the फ्रॉम banking पाकिस्तान। industry, हाँ। specifically that I can say एक because I ज़माने belong to में that वो industry. जब कहते थे कि एमिरेट्स में पायलट्स भी पाकिस्तानी होते थे और बैंकर्स भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी होते थे। बिल्कुल, अब बिल्कुल. थोड़ा-सा सिनेरियो चेंज हो रहा है या लग रहा है कि वैसे ही चल रहा है? Um, so if we talk about that time, it was massive, like a lot. And of course, now we're talking about like 18 years later. We still have a lot of Pakistanis in the banking industry. And I believe, and I know whoever did come, and none of them have left. हुँ, Very small percentage have migrated to Canada and the US, as you already know. But going back to Pakistan is still a very insignificant number in terms of at least the financial industry. तो आप अच्छा सिटी बैंक में पाकिस्तान में थी आप। Ji. उसके बाद फिर यहाँ पर कहाँ पर आई थी? यहाँ पे I got an opportunity at Mashreq. ओके, So in 2006 I came here to Mashreq Bank. ओके और उसके बाद फिर उसके बाद I then Noor Bank was an Islamic bank, which हुँ, was a bank which was envisioned by Sheikh Mohammed, and it was a big hype about a very good हुँ, हुँ, bank. And I wanted entry into Islamic banking. It was always something I wanted to do eventually, and it was a great opportunity for me. And I was in Noor Bank for 9 years, हुँ, and हुँ, I grew up in that bank. I learned most of the banking stuff that I have learned over there, especially the Islamic banking. So I have been attached to the consumer finance industry as a, being in product and strategy and credit roles. So I've seen the personal finance industry very closely, especially being in UAE for the last 18 years in the working. राइट, राइट। तो
अच्छा, आपसे मुझे मल्टीपल चीज़ों पे बात करनी है। एक तो ये कि आपकी एक बड़ी अच्छी स्टोरी है जिसमें आपने बताया था कि आपने कनाडा मूव किया था लेकिन फिर उसके बाद समझ में नहीं आया था आपको और वापस आ गए थे आप लोग। सो दैट वन वन पार्ट और दूसरा पार्ट ये कि जो आपने अपना टाइम यहाँ यूएई में गुज़ारा देन यू हैव योर किड्स हियर एज़ वेल। आपके जो बच्चे होंगे वो थर्ड जनरेशन यूएई बॉर्न होंगे। तो उनके बारे में कि आप समझती हैं कि यूएई के अंदर आप पूरी लाइफ़ गुज़ार सकते हैं, रिटायर्ड भी हो सकते हैं और सब पूरा पूरा प्रोसेस हो सकता है जैसे आपके पेरेंट्स ने उसी तरह से अभी भी यहीं पर हैं। सो बिल्कुल, थोड़ा-सा वो बताएँ कि इज़ इट पॉसिबल फॉर समवन टू रिटायर इन द यूएई? और आपके पास नेगेटिव स्टोरीज़ भी होंगी, पॉज़िटिव भी होंगी। आपकी अपनी तो बिल्कुल। माशाल्लाह से पॉज़िटिव स्टोरी है। बट Ji, bilkul. Again, my opinion on this has changed over time. But as we stand now, I believe that both because of my own experience with हुँ, the हुँ। third generation, like you mentioned, my kids are, and because of how UAE is progressing, I am now more confident that than maybe 15 years ago when I applied for Canadian PR, that UAE is definitely a place where you can retire. Not only are there more options for universities now, I know my sister, she is also living here, she has kids, and I know a lot of friends who are actually choosing to send their kids to UAE universities. Some of them are top ranked, like Khalifa University is one of the top ranks in the world, even. हुँ, And there is a lot of opportunities that UAE is offering. UAE is exceeding in AI and in a lot of areas where young generation is not the way we were. हुँ, It's not about being doctors and lawyers only. हुँ, The young generation wants to do new things. They want to be specialists, not journalists, and they want to find their niche. And UAE is offering a lot. So ये तो बात हो गई एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से जो मेरे ज़माने में नहीं था. मेरे ज़माने में ऑप्शंस थे या तो यू गो टू योर ओन कंट्री और या इफ़ यू आर योर पेरेंट्स हैव द मनी हुँ, यू गो टू द यूएस और कनाडा. When I applied for my Canadian PR card was exactly 1 year after I came to UAE हुँ, हुँ। because I had that mindset that while I ट्रांज़िशन है। while I could go to Pakistan at that हुँ, time, when I came here in 2006 to 2007, Pakistan, at least in my perspective, was not something I would envision in 18, 20 years to send my children to. Because while I loved, I loved to raise them here when it was a choice, I thought maybe a country which is more advanced and where I can actually get free education for my kids and maybe a good entry to university would be a good idea. So that's when my husband and I we went to an agent, how everybody used to do. And because of our experience and my specific category being accepted, which was in credit and risk, I think it was within a year we had the PR card. We went and landed in 2011. At that time, I just had one child. She was one. We had a great time. We met a lot of people. We spoke to a lot of families who were living there, who had migrated there, who were actually going through the migration process. Some good and some bad feedback. But generally, after we came back, when the time came to decide, we had like a few years to decide. And the more, time went by and how I had more kids, now I have three, mashallah. Uh, it just seemed like UAE, there is nothing like, quality of life was more important for me. Having easy access to our parents was important to us. My parents were in Abu Dhabi and they still are, alhamdulillah. My husband's parents were in Pakistan, which is only an hour, 2 hours, 1.5 hour away. We had seen a lot of friends who couldn't make it to to their safala, to the funeral of their parents, or even if the parents were sick, they couldn't make it on they couldn't time make yeah. from Canada, US. हुँ, Forget Canada, US, even UK. Sometimes the time difference is so much, you're just not able to make it. And हुँ, that was very important for my husband because his parents were also old and they were in Pakistan. Not only that, for me also, there were preferences. My parents were also aging, and being in the same country was important. हुँ, um, the fact that having access to halal food, having access to basic amenities which we overlook, sometimes, like having और भी कॉम्प्रोमाइज़। can't be compromised. At least हुँ, it was, for me, it was not compromisable. um, you know uh, there's so many facilities that UAE provides. There's a mosque in every place. There are washrooms which are, they have वार्ड फैसिलिटीज़ Muslim या water facilities for हुँ, Muslims. Those are small things, but as I was raising my kids, I realized that um, whether I go along with my husband and we uproot ourselves from UAE, we both were working and we had a good career going. Financially, also, it was a big risk, and for raising kids was also a little bit of a challenge. And if one of us goes and one of us stays here, like we were seeing, a lot of people were doing that. Let's say the husband stays here and earns tax-free income and sends the money back home. That was another choice I did not want to take.
I did not want my kids who were 1 or 2 years, 3 years old to spend the next 5 years of their lives विदाउट द डैड। without the father. हुँ, So it was not an easy choice, but it happened over time, and I think as time passed, we were more and more sure that I think we can give it up, and I think a quality of life, our preferences, our priorities are way more important than a passport or a ticket into a Western university. And we also hope that the way UAE is progressing, by the time our kids have university, they will have options. हुँ। So right now the kids do have options of UAE, and they do have options of abroad as well. It's just about how you basically plan your life and how what are the things which are important to जस्ट अ क्विक ब्रेक, क्योंकि मेरा चैनल यूजुअली एक्सपैट्स देखते हैं, ज़्यादातर जो एक्सपैट्स होते हैं वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका इस तरह की जगहों से होते हैं, और जो लोग व्यू कर रहे होते हैं वो तो या तो जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर होते हैं, या फिर वो यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या पूरी दुनिया में कहीं से भी हो सकते हैं। उन लोगों को जब अपने बैक होम पैसे भेजने होते हैं तो उनके लिए 2 प्रायोरिटीज़ होती हैं। एक तो ये कि जो उनका रेट है वो बेस्ट इन क्लास रेट हो, उससे अच्छा रेट कोई और ना दे सके। दूसरा ये कि जो पैसे भेज रहे हैं वो एज़ सून एज़ पॉसिबल उनके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएँ, या फिर उनके रिलेटिव्स के अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएँ। तो जो मैं ऐप यूज़ करता हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है, और उसके थ्रू जब भी मैंने पैसे भेजे हैं, क्विक रिसीव हुए हैं और बहुत बेहतर रेट्स मिले हैं कंपेयर टू अदर्स। सो विदाउट फर्दर डू, अगर आपको पैसे भेजने हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करके जब आप पैसे भेजेंगे तो आपको समवेयर बिटवीन $10 टू $15, जो भी ऐप की टर्म्स एंड कंडीशन उस वक्त की होंगी, वो आपको मिलेंगे पहले ट्रांसफ़र के ऊपर। सो डोंट वेट एंड मेक योर फर्स्ट ट्रांसफ़र नाउ। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। एक तो ये कि हम ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर देख ही नहीं सकते इन चीज़ों को, क्योंकि मेरा भी जो कनाडा का हर हर दफ़ा पर्सपेक्टिव आता है वो ये है कि वो बहुत दूर है। और अगर आपकी लेट्स से फैमिली पूरी की पूरी सेटल्ड है नॉर्थ अमेरिका में, फिर तो इट मेक्स समहाउ कि आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स यहाँ पर हैं Mm-hmm. या लेट्स से पाकिस्तान के अंदर हैं, तो Right. आपको जाना वहाँ पर और फिर वापस आना-जाना, वो एक सबसे बड़ा मेरे ख़्याल से पॉइंट होता है, जो लोग बहुत सारे लोग ओवरलुक कर देते हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है। बिल्कुल। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है इस्लामिक का अब तो ख़ैर काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं वहाँ पर। हम्म। लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी इंट्रोड्यूस हो गई हैं जो उस वक़्त भी नहीं थी। और अगर आप उस तरह की चीज़ों को देखेंगे तो अब तो जो ख़ास तौर पे कनाडा क्योंकि लिबरल बहुत है, तो हम्म। उसमें जो चीज़ें ऐड हुई हैं और इवन यूएस के अंदर भी, तो अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो अब तो और भी नेगेटिव और भी हैं, नेगेटिव हो गया है। बिल्कुल ठीक। लेकिन अब जब पॉडकास्ट लोग देखते हैं कनाडा से रिलेटेड, तो वो लोग फिर वहाँ से भी एक रिबटल आता है कि नहीं ऐसा नहीं है और वैसा नहीं है। मतलब बहुत सारी चीज़ें इस तरह के पॉइंट्स आते हैं, लेकिन हर एक का अपना पर्सपेक्टिव होता है। Right. And like I said, priorities की बात है. I have a very close friend. She went to Canada and she loved it, हुँ, and she managed everything without her husband. She was the only banker I know from my banking circle who actually ended up at a very good job. Before her, I used to hear people saying, "Oh, you would never get a job." Same level तो दूर की बात है, एक दो levels नीचे लोग तो branch में teller भी बनने को ready हुँ, हो जाते हैं हुँ, just to get a job. हुँ, Those things were very daunting for me because I am a very a highly career oriented person, and just for the sake of a few perks, or a possibility of a future, I do not want to uproot फ़ॉरगो द थिंग्स। myself, हुँ, and like you said, we didn't have that support system there. So I didn't have a family where I just have to go join with them. I हुँ, had to start from grassroots level. हुँ, So raising kids, getting a job, and starting a grassroots level in a country where neither the weather nor the culture, at least from what we saw, or the our Islamic priorities are not being met, it just didn't seem lucrative enough. चलें इस पे देखेंगे कमेंट्स किस तरह के आते हैं, जो अभी आप बातें कर रही हैं। Yes. अच्छा, अच्छा मुझे एक और चीज़ बताएँ कि जो पॉइंट था रिटायरमेंट का, जी, मुझे इसलिए इंटरेस्ट था उसमें कि आपके पेरेंट्स यहीं पर हैं एंड बिल्कुल। दे आर ऑफ कोर्स एज्ड माशाल्लाह से, तो वो उनकी आप हेल्थ केयर को कैसे मैनेज करती हैं? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है लोगों का जो यहाँ रहते हैं और इवन बाहर भी रहते हैं, और उनका होता है कि अगर मैं एक वन ऑन वन कॉल के ऊपर था तो उनसे मेरी बात हो रही थी, तो ही वाज़ फ्रॉम द यूएस और वो मूव करना चाह रहे थे यूएई। तो फिर मैंने उनको यही चीज़ बताई कि मैंने कहा इट्स नॉट गोइंग टू बी चीप। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं फॉर फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ। जब मैंने उनको कुछ कोटेशंस बताई जो कि मुझे पता थी, तो वो उन्होंने कहा वाक़ई एक्सपेंसिव है, लेकिन फिर भी यूएस से सस्ती थी। लेकिन यूएस के अंदर फिर जब आप 65 के ओवर हो जाते हैं तो आपको फिर वो हेल्थ बेनिफिट मिल जाता है। तो यहाँ पर किस तरह की कॉस्ट कोई वो कर सकता है, एनविज़न कर सकता है फॉर समवन हू इज़ लेट्स से 60 प्लस? So it is not an easy task, but because we really did not want my parents to go back to Pakistan. My father retired in 2010. He worked in the same company for 40 plus years, which is Etisalat.
after they retired, it took us a year to even figure out what we're going to do. So in that 1 year, obviously, we just used whatever उस वक्त medical तो services वीज़ाज़ were भी वो available. तो नहीं थे, गोल्डन वीज़ा भी नहीं था, कोई भी वो वीज़ा नहीं था। नहीं, हाँ, रेजिडेंस वीज़ा मैंने लगवाया था बिकॉज़ लाइक आई मेंशन्ड आई वाज इन द फाइनेंशियल सेक्टर एंड आई यू केम कुड टू हैव दुबई. I was doing, स्पॉन्सर्ड yeah, देम, हाँ। alhamdulillah, I was doing well, and I could get them a residence visa, and so I did. That was the first thing I did, and then we started scouting for health insurance. Initially, we thought we'd just go pay as you go, karenge. But then, as they grew older, and they had, they do have इलनेसेस। chronic illnesses. So I also got earlier quotations of 80, 90, 100,000 and plus. ये कब की बात है? This is 2000, like maybe 2012, 13, 14. Then we hit like say jackpot, you can say, and we found out that there are insurances which are very basic insurances. उसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है. Like you have to, like if I can say the name, so there was Daman Insurance, right? And a few people told us from the insurance industry, but you have to keep talking to people and figuring it out. And because we had that motivation that my parents have to stay here and they have to stay healthy, so we came to know about this Daman Insurance, which is a very plain basic insurance for sponsors who can sponsor their parents or any members of their family. So I purchased those, and starting from 6,000 for each of the parents, I had them for 4 or 5 years. They went up to maximum 13, 14,000 per person. Of course, it increased, but the beauty of that was they were not asking for any medical records, because any insurance company we used to go to, and with my banking background, I had a lot of access to Salama, to different, top heads of. They couldn't even help me because it is how it is. If they know your medical history, they will charge you accordingly. They will, obviously have the premiums accordingly. But this certain basic card, and I told a lot of my friends about it as well, was easy to obtain, and it was, and the only, maybe you can say, issue was there are not enough hospitals covered. So you have to travel to the hospital which is covered. My parents and I also, we do not go to clinics which we don't know about. So we wanted some hospitals to be covered. So we had Aster Hospital covered in Dubai, and a few others. But Aster was the best of them, and they, mashallah, even had surgeries on that card, multiple surgeries over the 3, 4, 5 years. और जब एक दफ़ा सर्जरी होती है, नेक्स्ट टाइम उसमें प्रीमियम नहीं बढ़ा उसका? No, अच्छा। no. हुँ, No, गुड। premium over time बढ़ा, but that was But not just because because of of the that surgery, company. no. No, there Okay. was no such thing, and everything is recorded and everything is legit and everything was known. And so we were just fortunate, and I have shared this information with a lot of my friends. And then a time came, and just about 2 years ago, the man stopped these kind of cards, and then I started my search again. So I went So ये to, उन्होंने बंद कर दी है इंश्योरेंस ये वाली? उन्होंने ये दुबई वीज़ा के लिए बंद कर दिया. So Okay. because I am a Dubai resident and my parents are Abu Dhabi resident, I अच्छा, तो think that's उनका the reason. रेज़िडेंट, लेकिन उनकी वीज़ा तो आपके थ्रू है ना? I don't understand also myself, to be अच्छा। honest. इस पे मैंने बहुत दफ़ा दमान से बात करने की कोशिश की, but I only got the answer that this policy doesn't apply to them anymore because they're Dubai visa. And although I am on golden visa and so are my parents for the last 1.5 year, I thought it was agnostic of Dubai and Abu Dhabi, but it seems that I think where you reside also matters. And you might wonder why my parents still want to live in Abu Dhabi, हुँ। but I think people who live in Abu Dhabi would know this. वो शारजा के लिए भी ऐसी है। Same. जिन लोगों को शारजा पसंद है वो फिर नहीं जाते। And at the age of 70 plus, I cannot force Ask them to them to move, move, yes. even the familiarity of which mosque to go to, you know, रोटी कहाँ से लेनी है, ग्रोसरी कहाँ से लेनी है? ग्रोसरी कहाँ से करनी है. UAE, Abu Dhabi is such a simple place. My father at 75, mashallah, he still drives. But he can't drive in Dubai. It's just a very different environment. And I want them to be as comfortable as they want to be. So then we went to Policy Bazaar. We again searched for, we found a few options. Cigna is one of them, and a few others. We ran into Darul Takaful, and that's the one that my parents have now. We had to fill a form. We had to go कोई through certain भी things. स्पॉन्सर्ड नहीं है, मतलब हम तो नाम ले रहे हैं सारे, लेकिन Yeah. अगर किसी को स्पॉन्सर करना है तो बता दें मुझको पॉडकास्ट के अंदर। Yes. लेकिन so you're satisfied with the insurance system all over? It's not the best, but like I said, there will be some pluses and minuses. तो ये तो अगर मैं कैनेडियन हेल्थ सिस्टम के बारे में पूछता हूँ तो वो भी इसी तरह से रिप्लाई आता है, इट्स नॉट द बेस्ट। तो जाहिर सी बात है, Exactly. आपको हेल्थ सिस्टम यहाँ पर अभी
एज़ हम लोग लॉन्ग बहुत एज़ स्पॉइल्ड हैं यूएई में, हाँ, 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 बहुत हाँ, स्पॉइल्ड हैं कि आप एग्ज़ैक्टली। जब मूड हो आप फ़ोन करें, स्पेशलिस्ट के पास पहुँचे। स्पेशलिस्ट के पास इन पहुँचिए। इंश्योरेंस कार्ड्स में ये है कि इफ़ योर पेरेंट्स आर आई मीन अल्हम्दुलिल्लाह माय पेरेंट्स आर नॉट दैट अनहेल्दी दैट दे कांट दे हैव टू समटाइम्स वेट for a GP to see them, and once the GP sees them, then they go for a specialist. But actually, the recent card that I have is straight to specialist. So the only problem is maybe you will not have enough branches. Maybe they'll have to drive to Dubai or something. But the care that UAE all hospitals give is so इज़ good सो गुड, यस। that compared to maybe other countries in the world, I have no complaints. राइट। तो मतलब फिर इसका मतलब है कि कोई भी रिटायरमेंट शॉर्ट कर सकता है जस्ट, लेकिन उसके लिए आपको फंड्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। बिल्कुल, मतलब वो तो आपके पास होना चाहिए। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि जो मुझे कोटेशंस मिल रही थी वो 25,000, 30,000, 35,000 इस तरह की पर मंथ के ऊपर पर पर्सन की कोटेशन मिल रही थी फॉर एन एल्डरली। बल्कि इससे भी Per ज़्यादा कि annum. पर एनम ऑफ Yeah, कोर्स, yeah, sure. पर एनम, यस। Yeah. बट इफ एज़ यू आर सेइंग कि 10,000 दिरहम्स तक में हो सकता Yeah, है काम। 13. This time it's about 13, 14 हुँ, after negotiations. हुँ, But yeah, it's about that much. Like for both parents, 20, 25, 30 is the minimum you need to have. But I think it's worth हुँ। worth the money. राइट। अच्छा, मुझे एक चीज़ आपसे ये पूछनी है कि एक तो ये कि आपने कनाडा का छोड़ दिया था, फिर आप नहीं गए थे आप लोग वहाँ पर। Ji. सो एनी रिग्रेट्स आफ्टर दैट टिल डेट? No, none. नन। None. In fact, beach mein, we even had our PR card. We even traveled to the US through Canada, and we had some grilling हुँ। experiences as well because we had not landed there. We had no regrets. आपको वीज़ा मिल गया था बाद में? No, दोबारा for दोबारा अप्लाई Canada, किया आपने? no, हाँ, no, no, we नहीं did अप्लाई not. किया? We did not apply. अच्छा। Maybe we'll feel that later. But I'm my sister lives in the US, so I'm mostly traveling to the US only, ओके। and depends on what my children want. My daughter still has about 4 years to go, so whether it's going to be US or UAE, हुँ, it's up to her. So I mean, we kind of have sort of हुँ। at this point, ओके। forgot about सो Canada. एक और पॉइंट मेरा एक हमारे यूट्यूब के कोलीग हैं बहरोज़, जो कि यूएस में होते हैं। Hmm. तो उनकी वाइफ़ के साथ मैंने एक पॉडकास्ट की थी, तो उन्होंने कहा था कि वो जब यूएई में थी तो उनको कोई जॉब करने की ज़रूरत नहीं थी, और प्रॉब्ली होती भी नहीं है बहुत सारे लोगों को, सिंगल इनकम पे काम चल जाता है। ये बिल्कुल, प्रॉब्लम आती है जब आप कनाडा या वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाते हैं, तो वहाँ पर सिंगल इनकम से काम नहीं चल रहा होता और उसमें आपको करना पड़ता है। मैं अभी एक वीडियो भी कर रहा था, किसी ने मुझे ईमेल की थी कि ही वाज़ अर्निंग $200,000 और ऑलमोस्ट लिविंग टू पे चेक, क्योंकि Mm-hmm. मॉर्गेजेस बढ़ गई हैं और बच्चे उनके 4 थे, तो ऑफ कोर्स, और वाइफ काम नहीं कर रही थी, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इवन Hmm. एट $200,000, क्योंकि टैक्सेस भी होते हैं। बट यहाँ पर आपको आपकी जो सर्कल है या आपने जिस तरह से काम किया है यूएई के अंदर, आई हैव सीन के वुमेन वर्कफोर्स में बहुत ज़्यादा है। तो बिल्कुल। उस पे कुछ बात करें कि लोग करना नहीं चाहते यहाँ पर, या होते हैं यहाँ पर बहुत ईज़िली आपको अवेलेबल जॉब्स भी अवेलेबल होती हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ भी होती हैं? Okay, so if I talk about myself and women from my circle हुँ, हुँ। who came from Pakistan, first of all, you have to have that strong backing of education. हुँ, हुँ। Uh, and most of the people who have actually started working over here already were working wherever they came from. So yes, you cannot start. Maybe it's difficult to start from zero. That you were a housewife in wherever you came from, and then you say today I want to start working based on my degree. Yes, it may not be that easy, but if you were already a working professional and you have a decent working history with you, I think there are enough opportunities out here. I've seen people switch. I have seen people take not very long but short breaks and come back to the workforce. But you have to be mostly a constant in the workforce. हुँ। Um, you can't take breaks in and out. इस हाँ, तरह ये तो नहीं हो मार्केट सकता. में एक थोड़ा-सा है यहाँ ये पर। इस मार्केट में है. हुँ, And that's why I never took a break. I had 3 kids. Apart from the maternity breaks, I never took any breaks, and I राइट। was happy to do that because I wanted my career to continue progressing. And financial industry, and like any other industry, is very competitive. So that room is not there. How as far as lifestyle maintain कर सकते हैं या नहीं कर सकते, again that is also again very personal to the family and how what kind of lifestyle they want to maintain. uh, Usually होता ये है कि जितना होता है फिर my lifestyle accordingly adjust हो ही जाता हुँ, है. हुँ। um, unless you have very clear goals on what you want to do, and very clear goals and how much you want to save and how much you want to invest. But generally I've noticed that in UAE, there are people who have women who work, and it's not such a big effect on the social, or bringing up children.
I have been working the whole time, and there was 9 months in between when I was out of job. I did not see any extra value that I was adding to my family during those 9 months, Hmm. staying at home, because life is so fast. You eventually end up, going picking kids, doing grocery. You fill your time. So I वो was पार्किंसंस लॉ है ना कि आप जो है ना, जो आपका काम है वो एक्सपैंड कर जाएगा। आपके पास टाइम होगा तो वो Bilkul, एक्सपैंड कर जाएगा। right. So this is my personal, after 22 years of being in corporate, learning that what I am doing for my kids as a working professional mother is not any different or any less than any who's not to demean anybody who, हुँ, or belittle those who stay at home. I'm sure they do a lot more. In fact, I look up to them because they do a lot more, हुँ, which is not even like seen. हुँ, At हुँ, least for us, it's seen what we're doing. हुँ। So it made it even more, it's more, compelling for me that, कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, अच्छा, अब उस पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि आपने कहा था कि ड्यूरिंग द जॉब आपकी एक दफ़ा जॉब लॉस हुई थी और उसमें प्रॉब्लम हुई थी। बिल्कुल। जबकि आप लोग तो डुअल इनकम है, तो उसमें एक अगर जॉब लॉस हो भी जाए तो इतनी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। सो हाउ डिड यू कोप विद दैट? और बीइंग अ डुअल इनकम, आपको आपको फाइनेंशियल शॉक्स लगे थे उस टाइम पर? क्योंकि जो यहाँ पर जिस तरह की इनकम Mhm. लेवल्स हैं, उसमें वो मसला होना तो नहीं चाहिए? So, yes, we are a dual income family, and we both had jobs. It was not a big financial shock because, like I said, it's about जिस तरह आप कहते हैं ना, टाइम भी एक्सपेंडेबल होता है, ये मनी भी। टाइम कब था जब आपकी जॉब लॉस हुई थी? 2017. अच्छा, Yeah, so ओके। I had, like I said, it was after Noorbank, and I was there for 9 years, and it was a bit surprising because it was a layoff. So, but the thing is, yes, of course, because I had worked in the company for so long, there was no issue of cash flow, alhamdulillah. But the thing is, the burden of the mortgage was definitely there. So we were living in the lakes, so we both were working. So वही बात है ना, जैसे lifestyle भी expand हो जाता है पैसों से, लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हो जाता है. So we were in that, and that was a learning which I had after that period. So we were not having a very lavish lifestyle, but like I mentioned to you earlier, raising my kids were always very important to me. So हुँ, because I could earn and I could add value, so we said, why not give them the best हुँ, कम्युनिटी हाउसिंग, तो और मॉर्गेज का भी बहुत ज़्यादा ज़ोर था, आपको हुँ, पता है, 2008 9 10 11 12 में, तो हुँ, उसी वक्त मैंने भी आई थिंक 2012 या 13 में लिया था. And I spent good 7 8 years in that house in the lakes. We had a community, and my kids were in the perfect age where they could, I would be at work and they could आउटडोर पे safely go to a park. I had no problem कि कहाँ जा रहे हैं, road पे नहीं है. So good neighbors, good community, everything was accessible. Of course I had a nanny to take care of them as well. It was perfect. हुँ, So the only shock was about handling the mortgage, because that was something that was an add-on for a dual income with the lifestyle that we had. We had two cars, like how typical two dual income family would be staying. So the house पे थोड़ा सा फर्क पड़ा था, and even then for the entire period I did even maintain my mortgage payments. So there's no issue with the payments because I had the cash flow. It's just that because in an industry like mine, whether it's going to be 6 months, 9 months, 1 year, you don't know. यू डोंट नो। And at a level where I was, it's not like I could just take any job at the point. While I still took a job which was a little lower than what I was, but I could not take it 3 notches lower. So it was a matter of time. So when we started continuing paying the mortgage, I realized that that's going to deplete me of all my savings. So we decided to sell the house. It was not the best feeling when I wanted to decide that, and actually to sell the house at the time, and that's another learning we had. कहने को होता है, mortgage है, बहुत amazing area. Lakes is an exclusive area. हुँ, It's right like below Meadows, if you want to, if you like. And we chose it and we loved staying in it. But there was a lot of expense which is going out in maintaining the house because it was ours. It took me a year to sell the house at maybe 300 400. इट वाज़ 2017? It was 2017 to 17 में मैंने start नहीं किया था. 17 to 18 when I was looking for a job, I was still furnishing my तो mortgages. उस वक़्त तो डाउनहिल पे चल जाना शुरू हो गई थी, थोड़ी-सी So it मार्केट was भी। not a time to sell. यस। I was still trying to manage my mortgages, but mortgage same tha. So हुँ, you see how we were going through it. Like no हुँ, job, mortgage payment is the same. The profit, or it was Islamic mortgage, but profit or interest component is the same. Market is low, I can't sell it. I can't even cover my mortgage value. So while I was still कितने साल की मॉर्गेज हो गई थी? at that time about 8 9 years. तो उसमें तो
उन्होंने अपने इंटरेस्ट या प्रॉफिट तो Mostly, निकाल लिया था सारा, mostly, और yeah, बाकी yeah, प्रिंसिपल के अंदर से थोड़ा बहुत कंपोनेंट किया होगा अभी तक, और yes. जो अप्रिसिएशन होगी वो उसमें से आप अप्रिसिएशन अच्छी हुई होगी मेरे ख्याल से उसमें। जब मैंने बेचा था, it was 2020. ओके। So 20? 21 March, but 20 के end तक मुझे buyers मिलना शुरू हो गए थे. Believe it or not, there was a lot कोविड of में तो फिर no, there was a lot of interest. A lot अच्छा। of interest. A lot of people from China came. A lot of people from different places were coming. I think 21 के मैंने first quarter में बेचा था. Final deal की थी. Um, yes, I got my mortgage value covered, and I got a little on top of it, but not something I would expect from a Extraordinary. lake's house. Yeah, हम्म। and of course it went way higher after अब that. उसके Now, बाद yeah. So some difficult times, not in terms of cash flow or savings, but in terms of making that tough decision, because I did not know, because the job that I landed up was not the same as before. So it was more of like a question of whether we, the studies were happening, the children are getting educated, going in higher classes, the kids were becoming older as well. So it was a bit of a tough decision, and we initially restructured our mortgage to pay only the profit payment, because the mortgage payment was very high. So after a few years, we did that. And then while we were paying the profit only, we just discussed and we decided that, might as well just live on rent, because it's like paying rent. That's when it clicked me that if I'm paying more profit only, I might as well go to a rented place where I don't have to pay from my pocket for all the, maintenance. Because Emaar villas are great, but, after 12, लेकिन 15 विलास की years... तो जो फी है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं होती कंपेयर टू नहीं, अपार्टमेंट्स। फी ज़्यादा नहीं थी. मैं मेंटेनेंस की बात कर रही हूँ. सो अच्छा। कभी कोई वाटर हीटर का प्रॉब्लम हो ऑफ गया, कोर्स वो खुद ही करना है। 1000 dirhams. हाँ। There were some rooms जिनके टाइल्स फूल जाते थे. Believe it or not. हाँ, And इमार की प्रोडक्ट में भी होता है ये। होता है, बहुत से प्रोडक्ट्स में होता है. It's a matter of also the country, the thing. The garden maintenance is so difficult. खाली आपने गार्डनर के नहीं पैसे देने होते. हर वक्त कोई ना कोई उसमें खर्चा लग रहा होता है. आज ये हो गया तो वो हो गया. It was actually taking a lot out of us, including the mortgage, this thing. And like I said, my kids were growing older. So I actually moved in 2020. Even though I moved to a better job, I decided like now that I moved to a better job, that extra income, I'm not going to let it go into mortgage, because my kids were older. They were in their, early pre-teens and all. They didn't need to go to a park in the community, and they were having their own activities outside. So I moved to a location where I got a house of double the size with half the rent of the mortgage I was paying. And, then I realized that what is important is, again, maybe, what you're giving to your family. For me, I always prioritize that. Yes, being a banker, I should have been more always investment focused. I was not until now, but most of my early years over here, I was not, because raising a family for a mother is always a priority. So we took the hit, although not financially at the time of selling, but yeah, could we have made more money? Yes. If I had waited longer, yes. But was I ready? No, because after having a shock of losing a job and then finding one job and then finding another better, you don't know when you're going to lose that job. So, the market also is not, always stable in terms of job. So we had to take those decisions and become more like closed into our, a risk-taking sort of a thing. And I'm very happy with where I am. I can say I'm living in Barsha. It is the best of both worlds. I live in a villa which is double the size. I have many more bedrooms. My kids have more space. It is accessible from every part of Dubai. It's very accessible. उसमें अभी मेरी एक बात हो रही थी अपने कोलीग के साथ, तो वो मुझसे कह रहे थे कि यार मुझे ज़रा रेकमेंड करो कि मैं क्या करूँ. तो उनका सिनेरियो इस तरह से था कि उनका आई थिंक अरेबियन ब्रांचेस के आसपास कोई एरिया है, वहाँ पर विला है जो आई थिंक उन्होंने 2001 में लिया था, और 3 साल की मॉर्गेज लॉक्ड थी. और उसके बाद रेट्स बढ़ गए, क्योंकि रेट्स तो बढ़े हैं ना उसके, बिल्कुल वो जो सब जीरो पे चला गया था उससे तो ऊपर चला गया. तो उनकी जो मॉर्गेज रेट था वो था उस ज़माने में जो मॉर्गेज पे कर रहे थे 6,000 दिरहम शायद थे. अब वो ऑलमोस्ट 11,500 के ऊपर आएगी एकदम से, मतलब जस्ट वन फाइन मंथ उनको एक डबल के करीब की हो रही थी. तो ही वो ऑल्दो के विला प्राइस 8 लाख दिरहम बढ़ गई थी, यानी कि 2.2 का था वो 3 मिलियन के करीब पहुंच गया, लेकिन उनको अच्छा नहीं लग रहा था. और दूसरा मसला, जब उन्होंने मॉर्गेज स्टार्ट की थी तो उनका जो कंपोनेंट था प्रॉफिट या इंटरेस्ट का, वो बहुत कम था, यानी कि वो 20% था,
और 80% उनकी प्रिंसिपल में से जा रहा था, विच इज़ Okay. वेरी स्ट्रेंज, Yeah. विच इज़ वेरी It's स्ट्रेंज। usually the other way बट around. अब उन्होंने अदर वे अराउंड कर दिया है। जब Yeah. उन्होंने Mm-hmm. रीवैल्यूएट किया और इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, तो अब उन्होंने अदर वे अराउंड किया है। तो मैंने कहा देखिए, उन्होंने कहीं ना कहीं से तो पकड़ना था आपको, अभी अभी तक पैसे आपने बिल्कुल। दिए नहीं उनको, शायद उनको कोई ऑफर मिली थी इस तरह की, तो अब इस तरह से हो गया। तो उनके पास लेकिन ऑप्शन था। अब हियर कम्स द पार्ट वेयर आपके पास जो थोड़ा बहुत कुशन होना चाहिए ना, उनके पास ऑप्शन ये था कि उनके पास इस वक्त 1 मिलियन दिरहम कैश में मौजूद थे, व्हिच इज़ आल्सो नॉट गुड थिंग, बिकॉज़ आपके पास इतने सारे पैसे क्या कर रहे हैं यहाँ रखे हुए, मतलब आपको कोई हाँ, ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। बट राइट। अब जबकि उनको पेन हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा मैं 5 लाख दिरहम का पर्सनल लोन ले रहा हूँ। हम्म। पर्सनल लोन के ऊपर जो इंस्टॉलमेंट बन रही है 5 साल के लिए, वो बन रही है मेरी 11,000 दिरहम, व्हिच इज़ इक्वल टू माय मॉर्गेज। लेकिन सिर्फ़ 5 साल के लिए होगी, वो मेरे 25 साल का मॉर्गेज था। प्लस उसके अंदर मैं शुरू के जो टाइम में पे करूँगा, वो सारी की सारी मेरी इंटरेस्ट अमाउंट होगी, जो कि मुझे नहीं देना। राइट। अब इसके ऊपर मेरा जो टोटल कॉस्ट आएगी, वो हार्डली 25,000 30,000 दिरहम्स आएगी इस पूरे सिनेरियो में, कि मैं अपनी 1% उसके ऊपर पे करता हूँ, जो पेनल्टी है, हम्म। ख़त्म अर्ली मॉर्गेज उसको करने के लिए। एंड 1% पे करने के बाद जो पर्सनल लोन ले रहे हैं 500,000 का, उसके ऊपर जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लगेगा वो, तो 30,000 दिरहम्स के करीब का उनका खर्चा आ रहा है। 1 मिलियन दिरहम उनके पास मौजूद थे, 1.5 मिलियन दिरहम वो बैंक को देंगे, मॉर्गेज फ्री करेंगे अपने आप को, एंड देन हिज लाइफ विल गो ऑन। तो अगर उनके पास ये कुशन नहीं होता ना, हम्म। तो वो फिर अगेन उसी रैट रेस में चले जाते और बिल्कुल। फिर वो कंटिन्यू करते उस चीज़ को। ऑल्दो कि एक्विटी थी प्रॉपर्टी के अंदर, हम्म। लेकिन उस एक्विटी का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि या आप उसको लिक्विडेट कर भी देंगे तो फिर क्या करेंगे? उसके बाद क्या करेंगे आप? बिल्कुल राइट। और एंड दिस इज नॉट जस्ट माई लर्निंग। I myself was a home finance product head in Noor Bank, and I have वाओ! been in home finance very closely. So while I have by the before the lakes house that I stayed in, I had another property also which I bought and it was rented. हुँ, एंड जब उसमें भी यही हुआ कि जब हमने ख़रीदा और रेंट किया तो बहुत अच्छा रेंट था, 4 लाख दिरहम उसका रेंट था। फिर वो उसके बाद रिसेशन आना शुरू हुआ, गिरना शुरू हुआ, एंड देन mortgage and renting and buying is a very it's not a passive kind of investment. You have हुँ, to be very active, even though I'm in an industry where it is, but you cannot gauge the market, you cannot predict the market. हुँ। I was trying to sell my house for 1.5 year. No real estate could tell me कब क्लोज होगी और कितने लोग आएंगे और कितना मुझे मिलेगा. हाँ, ऑफ Nobody कोर्स। can guide you in that. Same goes for the financial. I know so many bankers, my seniors and my colleagues, जिन्होंने बहुत सारे प्रॉपर्टीज लिए and a lot of किसी में पैसे भी बनाए, किसी में बहुत पैसे भी गवाए, हुँ, and most of them, believe it or not, are living on rent today. हुँ। कुछ प्रॉपर्टी उन्होंने रखी हुई हैं जिसमें रेंट आ रहा है, और जो प्रॉपर्टीज उनको लग रहा था बेकार है उन्होंने बेच दी हैं. दुबई की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दुबई की प्रॉपर्टीज़ के अंदर कुछ एक्सपोजर लिया जाए, तो कुछ एक्सपोजर के लिए आपके पास अगर छोटी अमाउंट भी मौजूद है, तो उसके थ्रू आप स्मार्ट क्राउड एक प्लेटफॉर्म है जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मार्ट क्राउड में स्टार्टिंग फ्रॉम इवन 1000 दिरहम्स 2000 दिरहम्स, जितनी भी छोटी अमाउंट है आपके पास, उससे आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आपका एक्सपोजर यूए की किसी एक प्रॉपर्टी के अंदर हो जाएगा और उसके थ्रू आपका रेंटल भी मिलेगा और आपकी प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन भी हो सकती है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप अकाउंट खोलेंगे और अकाउंट खोलने के टाइम पर आपको 250 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिल सकता है, जो कि मेरी तरफ से होगा, क्योंकि इस वीडियो को पावर किया हुआ है स्मार्ट क्राउड ने। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। वाइल कहना आसान होता है प्रॉपर्टी है बढ़ रही है कम हो रही है, लेकिन लाइक यू सेड इट्स इमोबाइल काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट. उसको हाँ, बेचना भी आसान नहीं होता, हाँ। और उसका जो आपने रिटर्न एक्सपेक्ट किया होता है, उस रिटर्न को एक्सट्रैक्ट करना भी आपके हाथ में नहीं होता है ऑलवेज. हुँ, समटाइम्स योर ओन कंडीशंस डोंट गो अलॉन्ग विद इट, समटाइम्स द मार्केट कंडीशंस डोंट गो अलॉन्ग विद इट. So हुँ। it is a complex investment. While it has given returns around the world in every country, but again, you have to be very savvy to बिल्कुल। be into this. उसमें इसके अलावा ये एज़ यू सेड, लोग इसको पैसिव इन्वेस्टमेंट समझते हैं। रेंटल को मैं कभी भी पैसिव इनकम हम्म, नहीं समझता। ऑल्दो कि बिल्कुल. रेंटल क्या है, मतलब आपने रेंट पे दिया हुआ है, हम्म. उससे पैसे आ रहे हैं। बट उसके अंदर जो टेनेंट्स के मसले आएँगे, जो उसके अंदर प्रॉपर्टी के कोई प्रॉब्लम आ गया, अल्लाह ना करे या कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपने इंश्योरेंस नहीं की होती है। यहाँ पर अभी लोग बारिश हुई थी पिछले बारिशें हुई साल. थी, फ्लड्स आए थे। तो उस केस के अंदर अगर आपने इंश्योरेंस नहीं की, जो कि नहीं करते लोग, नहीं करते. ज़्यादातर लोग नहीं फायर करते। हुई थी तमिल टावर में. हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली। अभी जो यूएस में कैलिफ़ोर्निया के अंदर जो आग लगी है, बहुत हम्म. सारे लोगों की इंश्योरेंस नहीं है। कुछ लोगों की इंश्योरेंस, कैन यू इमेजिन, मैं अभी मैं उस पॉडकास्ट को पूरा नहीं देखा था मैंने, आई डोंट नो कि उसके बाद क्या होगा, लेकिन मैंने उसमें सुन रहा था, ये प्रेडिक्शन थी वहाँ पर कि फायर होगी। कैन यू इमेजिन कि वहाँ के रेज़िडेंट्स थे, उनको नोटिस आ गया था इंश्योरेंस कंपनी से कि हम फायर का क्लॉज़ निकाल रहे हैं। फ्रॉम नाउ ऑन पोस्ट फैक्ट.
और जब जब पता चल गया कि फायर सोचें, आने या वाली है कैलिफोर्निया सोचें, में या और ये मौसम इस तरह का हो गया है, हम्म, उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हम इस क्लॉज को निकाल रहे हैं। कुछ हाउस की फायर इंश्योरेंस नहीं थी वहाँ पर, जबकि बड़े-बड़े घर थे। या सो दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट। इट इज़ डिफिकल्ट। यहाँ तो इंश्योरेंसेस में आई थिंक एक्ट ऑफ नेचर कवर्ड होता है। कवर्ड होता है ना, लेकिन वहाँ पर उन्होंने कोई इस तरह की या मैंने अभी कुछ हुई होंगी अच्छी वाली जिन्होंने फिर कर दिया होगा पोस्ट फैक्ट, व्हिच इज अगेन वेरी अनएथिकल फॉर अ हाँ। कंपनी टू डू दैट। हुँ। बट लाइक यू सेड एनी काइंड ऑफ नहीं, वो फायर इनकम आई नहीं थी अभी, लगी नहीं थी। लेकिन उन्होंने इंटीमेट कर फोरकास्ट दिया, के फ़ोरकास्ट के बेसिस पे। बेसिस के ऊपर उन्होंने कर दिया था, व्हिच इज़ अभी मैं वो पूरी पॉडकास्ट देखूँगा तो मुझे पता चलेगा कि उसके या बाद आगे हुआ क्या उसके सो अंदर। लाइक यू करेक्टली सेड, या रिस्क मैनेज बंदा खुद को आपको ही करना पड़ेगा। राइट। कोई आपका रिस्क मैनेज नहीं करेगा, नो मैटर विच इंडस्ट्री यू बिलोंग टू। हुँ। योर पर्सनल इन्वेस्टमेंट वट एवर फॉर्म इट इज़, आई थिंक यू हैव टू बी वेरी वेरी रिस्क अवर्स, एंड यू हैव टू नो कि मैं कब कब क्या हो सकता है, एंड बी रेडी फॉर इट। मैं एक चीज़ करता हूँ, मैंने कहीं सुना था ये, फिर मैं उसको बार-बार अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ कि आप अपनी वेल्थ बिल्डिंग को आउटसोर्स नहीं कर सकते। सो यू कैन नॉट रिलाय ऑन वन वेल्थ मैनेजर कि आपने उसको पैसे दे दिए और आप वो करता रहेगा, आपको देखना पड़ेगा। ये इसी तरह से किसी प्रॉपर्टी या कंसल्टेंट के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते आप, बिल्कुल क्योंकि नहीं। आपको नहीं पता कि वो उसके क्या वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो कि होते हैं यस, बहुत सारे लोगों के। yes, and believe it or not, I know enough people who have a lot of cash with them, pretty wealthy, whether it's from the financial industry or others. Sometimes they also are not, they don't know what to do with their money. हुँ, You would think that oh, bankers हैं financial industry के, but it's not about simple as just यहाँ डाल दिया वहाँ डाल दिया. It's quite a lot of sophisticated thing process, but it is very individualistic as well at the same time, हुँ, very personal. कि आपने कहाँ इन्वेस्ट करना है, लाइक मैं आपसे मेंशन करी थी हुँ, अर्लियर। अगर आपने इस्लामिक में करना है तो वो आपका सिनेरियो ही बिल्कुल अलग है। हुँ, फिर आपने अगर रिस्क अवर्स में करना है, या आपने 10 साल के लिए करना है, या आपने 2 साल के लिए करना है, तो हुँ। आपका सिनेरियो अलग है। एंड आई डोंट थिंक, लाइक यू सेड, यू कैन नॉट आउटसोर्स यस, दिस। यस। अच्छा, इसी पॉइंट पर मैं जो लोगों को बोलता हूँ ना, क्योंकि मैं अपने कोर्स पे भी यही बात करता हूँ, मैं अपनी अभी कोहोर्ट्स हो रहे हैं हमारे हमाद भाई के साथ और नदीम के साथ, वो भी यही बात हम लोगों ने मैंने भी यही बात की है हमेशा कि जो लोगों को कुछ पॉइंट्स नज़र आते हैं, इनफैक्ट मेरी एक स्लाइड भी है, वो मैं ओवरले कर दूँगा, जो यूएस के अंदर हम देखते हैं कि जो स्पेसिफिकली अगर कोई ऑलमोस्ट कोई हमने देखा था कि $100 की इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं, 1970 में अगर $100 की को इन्वेस्ट किया होगा, तो $22,000 बन जाएँगे एस&पी 500 के इंडेक्स फंड्स के अंदर। इसी तरह से गोल्ड के अंदर भी वो $5,000 बनाता है और रियल एस्टेट के अंदर भी कम पैसे बनते हैं। सो दैट शोज़ कि आपकी जो, क्योंकि जो वेल्थ बिल्डिंग होती है वो इक्विटी से होती है। इक्विटी का मतलब ये है कि आपकी अपनी ओनरशिप होगी ना किसी चीज़ के अंदर, राइट। वहाँ से ज़्यादा पैसे बनते हैं। और ओनरशिप आपकी रियल एस्टेट में होती है, लेकिन रियल एस्टेट में एक कॉन्सन्ट्रेटेड ओनरशिप होती है। उसके अंदर यू डोंट नो कि अगर आपके सारे पैसे एक ही घर में लगे हुए हैं, तो कोर्स। इमेजिन कि आपने डाइवर्सिफिकेशन को, तो बल्कि हम जब घर लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी गो इनटू डेट, यानी कि आपके पास अपने पैसे तो पूरे होते नहीं हैं। मैंने भी पाकिस्तान में घर लिया था, तो उसके अंदर 1-2 साल तो मैं डेट के अंदर था। ऐसा नहीं था कि मॉर्गेज 25 साल वाली होती है, लेकिन आप डेट में चले जाते हैं। बिल्कुल। प्लस ये पैसिव नहीं होती, हम्म। बिल्कुल भी पैसिव नहीं होती है। जबकि जो स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट होती हैं, अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स पिक ना करें, हम्म। मैं एग्ज़ाम्पल भी दे सकता हूँ, जैसे कंपनीज़ लाइक सिस्को, आईबीएम, ब्लैकबेरी, नोकिया, बोइंग। बोइंग का स्टॉक $400 पे चला गया था, उसके बाद से रोज़ जब भी उसके जहाज़ गिरते हैं, वो स्टॉक और नीचे चला जाता है। जबकि ये हम्म। वो कोविड में जब नीचे गया था, तो कुछ लोगों ने कहा था कि अब क्या होगा? मतलब जब कोविड खत्म हम्म। हो रहा था, तो उन्होंने कहा था, "आप खरीद लेते हैं, अब कोई मसला ही नहीं है।" लेकिन उसके बाद इतने क्रैशेज़ हुए, तो आप बड़ी से बड़ी कंपनीज़ को नहीं गारंटी कर सकते कि कुछ नहीं होगा उनके साथ। इसी तरह से जब आप पैसिव इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो जो यूएस के ईटीएफ्स हैं, उससे बेहतर कोई पैसिव इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब उसमें हल शरिया कंप्लायंस का मसला आता है, लेकिन शरिया कंप्लायंट ईटीएफ्स भी मौजूद हैं, लेकिन उनके ऑफ कोर्स रिटर्न्स उतने नहीं होते। हम्म। होता क्या है कि जब आप यूएस की इकोनॉमी में बिलीव करते हैं, तो आपको होता है कि जितनी भी कंपनीज़ वहाँ काम कर रही हैं, वो एक आउटपुट दे रही हैं, वो अच्छा आउटपुट देंगी और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको फ़ायदा करेंगी वो। बिल्कुल। और जब आप एक बास्केट के अंदर जाते हैं, तो आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आईबीएम ने क्या किया है, सिस्को ने क्या किया है, वॉलमार्ट ने क्या किया है, वो यस, एक सारा बास्केट में डाइवर्सिफाई हो जाता है। डाइवर्सिफ़ाइड होकर वो ऊपर की तरफ जाता है, जब इकोनॉमी ऊपर जाती है। एट द सेम टाइम जब 2000 से लेकर आई थिंक 2013 तक यूएस की स्टॉक मार्केट ने बिल्कुल फ्लैट रही थी, कुछ भी नहीं किया था उसने, मतलब वो ज़ीरो रिटर्न्स थे। अगर माइंडसेट आपका इसी तरह से होगा कि आप उसमें इस तरह की चीज़ों में परेशान हो जाएंगे, फाइनेंशियल मेल्टडाउन आता है 2008 के अंदर, या कोविड आता है 2020 के अंदर, तो उसमें मार्केट बिल्कुल नीचे जाती है, नोज ड्राइव करती हैं, तो उस टाइम पर असल में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं मेरे ख्याल से, वो होती हैं आपके टेस्ट ऑफ नर्व्स। आपका जैसे घर आपने सेल करना पड़ा, हम्म। अगर आप उसको होल्ड कर लेती हैं, तो आप अभी देख लें कि वो बहुत ज़्यादा उसमें बिल्कुल। फ़ायदा होता है। यस, आई तो एग्री। ये चाहे वो स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट हो, अगर आपको पता है कि यार आपके एक अच्छी जगह पर एक विला है, अपार्टमेंट भी नहीं है, विला है, तो आपको पता है कि इवेंचुअली ऊपर जाएगा। सो इन्वेस्टमेंट्स के अंदर मेरे ख्याल से टेस्ट ऑफ नर्व्स होता है।
बिल्कुल। लेकिन एट द सेम टाइम अब जब स्टॉक्स की हम यूएस की बात कर रहे हैं तो मैंने कहा ना कि उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट था, 1.5 डेकेड का, छोटा सा नहीं, 15 साल का एक टाइम था जिसके अंदर यूएस के स्टॉक्स ने परफॉर्म नहीं किया था। उससे पहले भी टाइम थे। उस टाइम पर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने यूएस की स्टॉक मार्केट को आउट परफॉर्म किया था। 15 साल में पाकिस्तान के डॉलर टर्म्स के रिटर्न यूएस की स्टॉक मार्केट से ज़्यादा थे। तो ये चीज़ें वाओ! लोगों को नहीं पता होती कि थोड़ी सी रिसर्च अगर कर लें तो उसमें क्या होगा। अच्छा, अब आप ये तो नहीं कर सकते कि आप यूएस में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेट्स से अगर इंडियन है तो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसका ईज़ी वे आउट है कि आप ये मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, जिन्होंने सिर्फ़ एक ईटीएफ में अपनी पूरी वेल्थ डाली हुई है और वो ईटीएफ है वर्ल्ड ईटीएफ। हुँ, हुँ। इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड इकोनॉमी ऊपर जाएगी तो उसमें आप भी ऊपर जाएँगे। अगर वर्ल्ड इकोनॉमी नीचे आती है तो आप भी नीचे जाएँगे। उसपे फ़ायदा ये होता है कि आपका जो मेजॉरिटी पोर्शन है वो तो यूएस का होगा। क्योंकि यूएस की जो ग्लोबल जो जीडीपी है वो बहुत ज़्यादा है। हुँ, तो 70% वर्ल्ड ईटीएफ जो है वो यूएस का उसमें यूएस का कंपोनेंट होगा, 30% उसमें रशिया रशिया तो ख़ैर अब नहीं होगा, लेकिन चाइना होगा, उसमें इंडिया होगा, उसमें साउथ अफ्रीका होगा, उसमें ब्राज़ील होगा, उसमें साउथ हुँ। अमेरिका होगा। वो सारी कंट्रीज़ की कंपनीज़ छोटे-छोटे लेवल के ऊपर होंगी। उसमें यूरोप की कंपनीज़ होंगी, उसमें कैनेडियन कंपनीज़ होंगी, ऑस्ट्रेलियन कंपनीज़ होंगी, सारी कु सब कुछ होगा। उसका रिटर्न अगर देखें तो पिछले 5 साल के अंदर यूएस का रिटर्न अगर है फ़र्ज़ करें 90% 5 साल का, तो जो ये वर्ल्ड ईटीएफ है उसका 60 या 65% के करीब है। बट पॉइंट इज़ दैट कि आपने अपने आप को इतना डाइवर्सिफ़ाई किया हुआ है कि अगर यूएस के साथ भी कुछ होता है ना, तब भी आप पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, आपको यस, रिटर्न्स उतने नहीं मिलेंगे, लेकिन आप पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि आपने ओवरऑल उसको डाइवर्सिफ़ाई किया हुआ है। श्योर। ये चीज़ इसी तरह से है कि आपने एक दुबई के अंदर एक पर्टिकुलर आपके पास लेट्स से 2 मिलियन दिरहम से आपने एक अपार्टमेंट ले लिया, बस सारे पैसे उसमें लग गए। अब गॉड फ़ॉरबिड और उसमें आपने इंश्योरेंस भी नहीं ली हुई है और गॉड हुँ, फ़ॉरबिड उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, फ्लडिंग होती है, अर्थक्वेक आता है, कुछ भी हो जाता है, तो वो एक अपार्टमेंट है। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट कि आपने ये काम किया हो, आपने कहीं फंड में इन्वेस्ट किया हो, लेट्स से सऊदी के रियल एस्टेट फंड में इन्वेस्ट किया हो, दुबई की किसी और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हो, आपने कहीं पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया हो, तो आपके पास डाइवर्सिफाइड ऑप्शंस हुँ। होंगे जगह-जगह। वो अगेन मुश्किल होगा उनको मैनेज करना। उससे आसान ये है कि आप एक फंड ले लें, ईटीएफ्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जो कि अगर आप शरिया कंप्लायंट की तरफ जाना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। वो जब अच्छा, वहाँ से भी कोई नहीं कर कर सकता, उसको ईटीएस भी समझ में नहीं आते, तो मैं फिर अगेन मैं हर दफ़ा अपनी वीडियोज़ में बात करता हूँ। बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है सर्वा का और सर्वा मुझे कोई पैसे नहीं देता। आज तक उन्होंने पैसे नहीं दिए मुझे। वो उनका सीटीओ, सीएफओ सब मुझसे बात करते रहते हैं। मैं कहता हूँ, भाई कोई तो मुझे पेड कर दो मुझको। मैं तुम लोगों की इतनी बातें करता हूँ, वो कहते हैं हाँ, कर देंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। बट आई डू एफिलिएट विद देम। या आई एनीवेज़, सॉ यू एट द इवेंट एज़ वेल। हाँ, बुलाते रहते हैं वो इवेंट से बुला रहे हाँ, थे। इवेंट्स में बुलाते हैं वो। तो लेकिन और उनके पास बहुत लोग जाते हैं। आई आई नो पीपल हू इन्वेस्टेड $100,000 $200,000 जस्ट No, it थ्रू is माय one of the वीडियोज़। top startups in the यस, UAE. यस, It's got some award as well. यस, Yeah. यस, यस। बहुत अच्छी कंपनी है। सो अच्छा, वो बाय द वे वेल्थ सिंपल जो कनाडा में है, उन्हीं की Mhm. सब्सिडरी है। अब वो लोग पता नहीं, अब वो उन्होंने ओह! मुझे पैसे तो देते नहीं है, तो मैं बता भी दूँगा उनको, क्योंकि वेल्थ सिंपल जो कनाडा में है, अच्छा, उन्हीं की फाउंडर्स की ओके। ये कंपनी है। एनीवेज़ उनके पास एक प्रोडक्ट है रोबो इन्वेस्टर प्लेटफ़ॉर्म के अंदर, सर्वा इन्वेस्ट का। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता तो उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। $500 $1000 जितने भी महीने के हुँ, महीने डालते रहें आप उसके अंदर। उसमें आपकी लर्निंग ये होगी कि आपको ये भी पता होगा कि उनकी एलोकेशन क्या है। क्योंकि उनकी ऐप के अंदर आपको नज़र आता है कि उन्होंने कहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है। mhm, उन्हीं चीज़ों में बाद में जाकर 6 महीने बाद, 8 महीने बाद आप उन चीज़ों में जाकर खुद से इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आपको ज़रूरत नहीं है कि आप सर्वा इन्वेस्ट के थ्रू जाएँ। ओके। लेकिन वो एक और ग्रुप है सिम्प्लीफाई का, मैंने आपको कहा भी था उसमें बिल्कुल, ऐड जी, करने को। राइट। उसके मॉडरेटर अली ईरानी थे, तो वो आया हुआ था एक दफ़ा पॉडकास्ट पे, तो उसकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उसने बोला था, इन्वेस्ट नाउ, ऑप्टिमाइज़ लेटर। तो आपको इन्वेस्टमेंट आज स्टार्ट कर देनी चाहिए, भले वो छोटे अमाउंट से हो। अगर आपके पास 1 मिलियन दिरहम है तो आप 50,000 दिरहम से स्टार्ट कर दें। आपके पास 50,000 दिरहम है तो 5,000 दिरहम से स्टार्ट करें, लेकिन इन्वेस्ट स्टार्ट करें। और अपना कुशन हमेशा रखें, इमरजेंसी फ़ंड अपने पास रखें। यूएई में जो लोग होते हैं मैं उनको बोलता हूँ कि कम से कम आपके पास 1 साल का इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए। वैसे जब इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स को सुनते हैं या आप 6 मंथ्स कहते हैं, 6 मंथ्स कहते वर्ल्ड हैं, वाइड इज़ 6 6 मंथ्स, मंथ्स या कहते हैं, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स इस ग्लोबली, तरह कहते हैं। लेकिन या। क्यों, और मैंने पर एक यूएई इज़ अ यूएई, क्योंकि आप डिफरेंट एक्सपैट मार्केट। हैं, आपको नहीं पता आपको आपके आपकी सामने है कि लायबिलिटीज़ और ज़्यादा होती एग्ज़ैक्टली, हैं, एग्ज़ैक्टली, देयर इज़ मेडिकल, देयर इज़ वीज़ा कॉस्ट्स एंड दोज़ एग्ज़ैक्टली। थिंग्स आर एडिशनल, राइट, 1 राइट। 1 ईयर्स इमरजेंसी फंड इज़ अ मस्ट। या, आप यूएई में रहते हैं। बिल्कुल, एंड एजुकेशन पॉकेट से जाती है ना? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, सो जब जब आप अनलाइक वेस्टर्न कंट्री जहाँ 6 महीने कहते हैं वहाँ एजुकेशन तो फ्री होती है छोटे बच्चों की, तो हाँ, यहाँ पे तो वो भी आपने ही अपने अफोर्ड पैसों करनी होती है इफ यू बिल्कुल, प्लान टू बिल्कुल। स्टे हियर। एग्ज़ैक्टली। सो ये सारी चीज़ें करते हुए आपको 1 साल का इमरजेंसी फंड, और सिर्फ़ 1 साल का नहीं, अगर आप इस तरह की चीज़ों में जा रहे हैं जो कि रिस्कियर इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, बट प्रूवन इन्वेस्टमेंट्स हैं फॉर द लास्ट नॉट डेकेड्स, सेंचुरीज़ के ऊपर प्रूवन इन्वेस्टमेंट्स हैं। उनके अंदर आप जाते हैं तो हमने ये भी देखा है कि 15-15 साल तक चीज़ें नीचे रहती हैं।
लेकिन वो एक टाइम आता है कि फिर वो वन फाइन डे ऊपर जाती हैं और उसके बाद फिर वो सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करती हैं। उस वक़्त आप कहते हैं कि यार काश इन्वेस्ट किया होता। ये इन्वेस्ट करने का टाइम वो था जिस टाइम पे वो चीज़ें लो लो पर लो थीं। थी। बट उनके अंदर अगर आपने वो पैसे इन्वेस्ट किए, आपको 2 साल बाद चाहिए, 3 साल बाद चाहिए, 5 साल बाद चाहिए, तो वो नहीं चलेगा क्योंकि वो कभी भी नीचे जा सकती है। एज़ आई या सेड 15 साल भी जो है ना नीचे रह सकता है। सो उनमें आपको वो पैसे इन्वेस्ट करने हैं जिसमें आपको साइकोलॉजिकली जो है ना ये प्रॉब्लम ना हो कि हमने कहाँ इन्वेस्ट कर दिए, पैसे नीचे चले गए। हम्म, जब जब तक ये प्रॉब्लम रहेगा ना, जब तक आपके इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है क्योंकि आप उसको निकाल लेंगे। और बिल्कुल। मैंने ये किया है, 2008 में भी मैंने किया है, मैंने 2011 में भी किया है। और मुझे यही चीज़ जो मैं आज बात कर रहा हूँ, अगर यही चीज़ मुझे किसी ने बताई होती 2008 के अंदर, मैंने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया था और वो निकाल 2009 में लिया। सब निकाल लिया था मैंने, मतलब 12 आई थिंक 20% 30% नेगेटिव पे निकाल लिया था मैंने। एंड देन 2011 में मैंने एक और चीज़ की थी जो कि ट्रेडिंग होती है, वो भी नहीं करनी चाहिए नए लोगों को। उसमें भी नुकसान, फ़ायदा हुआ था $10,000 का 12,000 हो गए, 12,000 से फिर वो $5,000 हो गए। एंड आई नो समवन, उसने मुझसे वन ऑन वन कंसल्टेंसी ली थी जो कि क्रिप्टो के थ्रू 28 ईयर्स के अंदर 0 टू $7 मिलियन पे पहुँचा था। एंड फ्रॉम दैट 7 विदिन 2-3 ईयर्स, और विद फ्रॉम दैट $7 मिलियन ही वेंट टू $2 मिलियन। उसके बाद उसने बोला था अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मुझे सीधा-सीधा रास्ता बताएँ कि अब मुझे वाओ। इस पैसों को कैसे सेव करना है। हम्म, सो ये टेम्परामेंट, माइंडसेट, ये सारी चीज़ें आपको प्ले करनी पड़ती हैं। टेक्निकल चीज़ों में चीज़ें आपकी इम्प्रूव नहीं हो सकती। टेक्निकल चीज़ें पता है आपको, बहुत अच्छी बात है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सब कुछ पता है, उनको चार्ट्स रीड करने आते हैं, उनको फंडामेंटल्स रीड करने आते हैं, लेकिन हम्म, उनका टेम्परामेंट नहीं होता, उनका माइंडसेट नहीं होता। like you सो said, have the mental, not to crack under pressure and हाँ, things like those. हाँ, That हाँ। makes a big difference. सो दैट इज़ समथिंग। और यहाँ यूएई की मार्केट के अंदर ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ अच्छी होती हैं। अगर किसी को प्योरली इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, पैसिवली देखना है, तो किसी अच्छे डेवलपर को देख लें और उसके साथ इन्वेस्ट कर दें। ऑफ प्लान प्रॉपर्टी के अंदर 3 साल 4 साल के अंदर आपको प्रॉपर्टी हैंडओवर होती है। आपको ना उसमें ये देखना है कि टेनेंट कौन है, क्या है, आपको इवेंचुअली जब हैंडओवर होगी, तो अगर यूएई मार्केट अच्छी चल रही है तो आपको पैसे अच्छे मिलेंगे उसके अंदर। Mm-hmm. उसके अंदर कुछ चीज़ें, पैरामीटर्स ऑफ कोर्स शुरू में देखने होते हैं, लेकिन इवेंचुअली जब आपको मिलेगी तो आपको पैसे अच्छे मिलेंगे, आपको रेंट करना है रेंट कर दें, वरना आप उसको फ्लिप कर दें। सो दैट इज़ समथिंग, मतलब You जो think there's still scope for that over here? अगेन इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। मैं अभी भी And ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि सिर्फ़ और मैं अभी एक दोस्त से मिला था, तो उसको मैंने पॉडकास्ट पे बुलाया था, फैसल नाम था। 2019 से पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी यूएई के अंदर, और शायद उनकी अपनी इक्विटी 3 मिलियन दिरहम की है, लेकिन वो बढ़कर साढ़े 6 मिलियन 7 मिलियन दिरहम से पहुँच गई है, जस्ट mm-hmm. बिकॉज़ वो रोल कर रहे हैं। और जब एक दफ़ा आपको समझ में आ जाती है बात, Right. आप अपनी इन्वेस्टमेंट मेथोडोलॉजी पे चलना शुरू कर देते हैं और आपको वो चीज़ मेक सेंस कर रही होती है, Mm-hmm. तो फिर आप कर सकते हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि सबके लिए वो सही होगा, Right. लेकिन Yeah. वो चीज़ें जब आपको समझ में आ जाएँगी, अगेन वही बात है कि Personal journey. हाँ, पर्सनल जर्नी है, तो बिल्कुल. वो जब तक समझ में नहीं आती। And trying and testing, of हाँ। course. Yeah, अच्छा, it's a आपकी journey. एक पॉइंट आपका था जो आपने मुझे शुरू में कहा था कि आपको फाइनेंस कोचिंग की तरफ जाना है, उसके लिए मुझे भी आपसे पूछना था जी. कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? और आपने एनएलपी प्रैक्टिशनर की भी बात की थी। आई जी. वांट टू नो अबाउट दैट बिकॉज़ मैंने अभी जो कोहोर्ट किया था हमाद भाई के साथ, उसके अंदर मुझे बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें पता थी, लेकिन द वे ही लाइक कंडक्टेड द कोर्स, वो जो एंगेजिंग पार्ट था वो मुझे नहीं पता था पहले कि लोगों को कैसे एंगेज करना है। ऑल्दो कि मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, पिछले Mm-hmm. 800 वीडियोज़ मैंने डाल दी हैं, लेकिन टू एंगेज अ लाइव ऑडियंस वो मुझे नहीं पता था। दैट इज़ सम आर्ट इन इटसेल्फ। Yes, it is an art, and I think the art starts from self development perspective. You have the experience, mashallah, and you have the experience as well as the technical knowledge in this area. Um, Similarly, like for me, I realized also only recently that yes, I do have experience in the corporate, especially in the finance industry, but at the same time, I can use this experience and this knowledge to pass on this knowledge. But to be able to pass on this knowledge, like you said, in your case, for example, financial coach, in my case, I want to be a financial coach or executive coach or even a personal relationship coach. For any of these platforms के लिए आपको मतलब इन चीज़ों के लिए you have to invest in some certifications. I have already embarked on a journey myself. मैंने अभी recently अपना emotional intelligence का practitioner का certification हासिल किया है, and from a company called Elevate Life. It is actually it's also run and owned and founded by classmate of mine from IBA. It is way much cheaper than how what I would pay in UAE, and the certifications are all from world renowned organizations जो करते हैं. And then now I am getting the license for a coach, which is an emotional intelligence coach. So इसमें बहुत सारी fields होती हैं, and I will definitely connect you with the right people. Emotional intelligence is one.
tool. NLP, which is neuro linguistic programming, is another tool. NLP is and these tools actually help you form that uh, coaching, mindset for you. While you have the technical knowledge and experience, and you have a lot of that, ये आपको सिर्फ shape करेगा, and they will just give you that, let's say, license to be able to do this on a professional level. That's all it is about it. And NLP के बारे में मैं खुद करूँगी, but अभी मैंने नहीं किया है because I'm becoming an emotional intelligence coach as we speak. And then there is another NLP is basically how you जैसे आपने कहा ना, आपके पास knowledge, resources, पैसा सब कुछ हो सकता है, but your mind has to be Yes, yes, wired. So yes. that is where you can add that value by doing NLP, because NLP is all about how you can rewire your brain to a certain condition. आप बाहर के environment को change नहीं कर सकते, but आप अपने आप को change कर Yes, सकते हैं. yes, You yes, can. yes. So emotional intelligence में जो मैंने अभी सीखा है, and I'm doing is as a coach as well, and I'm trying to complete my number of hours to get the license. Mhm. After which I can professionally do that, is how you uh, teach people how to manage triggers, how to self-manage themselves. Like you said, ना जब चीज़ें ख़राब होती हैं, things, people just come under pressure and they just sell everything or do these. So emotional regulation is part of their stress management, even to the extent of social management is part of these programs. So there are not very long, 10-12 दिन के programs होते हैं, and there is enough people out there UAE में, but if I can even connect you people from different other countries. India में बहुत programs होते हैं, Pakistan में they cost us cheaper because they are in rupees, and the certifications are all world renowned, so we can get those, and you can officially and professionally actually do those kind of coaching sessions. आप already one to one करते हैं, you'll just have a certification towards नहीं, it. लेकिन एनएलपी के बाद आपकी अपनी जो अप्रोच है वो भी तो चेंज होगी ना? बिल्कुल. आपकी अप्रोच चेंज हो अप्रोच जाएगी। आपकी अपनी खुद की लाइफ भी चेंज हो सकती है हुँ, एक्चुअली, बिकॉज इमोशनल इंटेलिजेंस हैज चेंज्ड मी अ लॉट इन इटसेल्फ, बट एनएलपी इज द नेक्स्ट लेवल. हाउ यू रिवायर योर ब्रेन, how you can actually make something, something that you dislike, you can start liking that, or something that you want to, people can quit smoking through that. So it's how you हुँ, rewire your brain through those things, and you can gather courage in areas where you never had courage. So those kind of confidence building techniques are there. हुँ, हुँ, And I think investment is all about confidence and taking risks and being aware. हुँ, So a lot of self awareness is part of all of this. पहले आप अपने आप को समझें, फिर अपने आप को एनालाइज करें, फिर अपने आप को रिवायर करें, एंड देन यू हैव अ होल न्यू वर्ल्ड हुँ, फॉर यू. तो ये राइट। आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने उसके लिए, एंड देन ऑफ कोर्स वंस यू गेट द लाइसेंस इन दीज थिंग्स, यू बिकम एन एल पी, लेट्स से प्रैक्टिशनर योरसेल्फ, यू कैन अप्लाई दीज टूल्स. आपको एन एल पी पढ़ाना ज़रूरी नहीं है लोगों को. हुँ, हुँ। आप इन टूल्स को, जैसे हाँ, मैंने हाँ, इमोशनल मेरा मेरा पॉइंट इंटेलिजेंस यही यूज़ है, किया है, या मेरा मैंने पॉइंट यही इमोशनल है। इंटेलिजेंस हाँ, किया है, अब मैं एन एल पी करूँगी, तो मैं ये टूल्स अपनी कोचिंग में यूज़ करूँगी. हुँ, I can help people हुँ, as a coach in any field, executive, personal relations, or you, like in your case finance, to move them from point A to point B without helping them. Like आप कह रहे हैं ना, ये मैं उनको बता नहीं सकता उन्होंने कहाँ इन्वेस्ट करना है, हुँ, but आप उनको you can show them the हुँ, way कि हुँ, आप अभी point A पे हैं, मैं आपके लिए एक vehicle बन सकता हूँ to take you to the point B, but चलाना आपने है, यस, आपका रास्ता आपको पता है, यस, आपका गोल आपको पता है, यस, but you condition them to reach that point, for which you need to acquire those skills, which will be हुँ, excellent. And of course you can do one-to-one coaching as well, and you can also do, like in your forums, it adds a lot of value, because you are, I notice, and I mean, this is also my purpose, is to, why are we doing all of this, like why am I here, why are you doing what you're doing? Because I have at least found that purpose, that we need to, whatever we have gathered in our lives so far, we need to make positive changes to other people's हुँ, lives as well. हुँ, It's not always about making money. Sometimes the value that we add to other people's lives is way more, यस, valuable यस। than making money for ourselves. इट्स अ बाय प्रोडक्ट, It's a पैसे बाय byproduct. प्रोडक्ट हैं, वो वैसे ही आ Yeah. जाते हैं। And if you can attain those tools to make this a better हुँ, job for you, which you have already taken upon yourself, and you have the license, so you get more, let's say, license always adds more weightage to what you're saying. हुँ, So that's definitely a great thing. I'm on that journey, हुँ, apart from my regular work, and who knows, future mein jaake that will be my हुँ, post retirement plan. हुँ, And that is something which doesn't need a space, it doesn't need a work job. You are an asset in yourself, so you हुँ। are the capital. राइट, राइट। अच्छा, इसी बात पे वो जो पॉइंट था कि आपके पर्पस जो है वो जैसे यूएई में आके लोग जो है ना वो ब्लिंक से इम्पैक्ट हो जाते हैं, ख़ास तौर पे जो हाई इनकम अर्नर होते हैं जो उस कैटेगरी में आते हैं। तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि यहाँ पर आपका माइंडसेट चेंज होना चाहिए।
जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, जैसे अब मैं कैलकुलेट कर रहा था एक अपनी स्लाइड के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन मैंने कहा यार ये वाक़ई एक पॉइंट है कि अगर मैं अपनी 10 साल पुरानी गाड़ी रिप्लेस करता हूँ, तो मैं कॉस्ट क्या दे रहा हूँ? उसकी कॉस्ट मैं दे रहा हूँ तकरीबन आज वो ज़ीरो हो गई ना, अब तो मैं जो हुँ, भी सिर्फ़ मेंटेनेंस जाती है उसकी, और मेरा रनिंग भी इतनी ज़्यादा नहीं है, मेरा ऑफ़िस भी ज़्यादा दूर नहीं है और मेरा वर्क फ्रॉम होम भी थोड़ा बहुत होता है। तो मुझे सिर्फ़ फैमिली के साथ वीकेंड्स पे जाना होता है, या फिर मैं वैसे ही ऑफ़िस ज़्यादा दूर नहीं है, उसमें करना होता है। सो रनिंग ज़्यादा नहीं है। एट द सेम टाइम कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, उन्होंने गाड़ी सिर्फ इसलिए चेंज की कि यार वो पुरानी हो गई थी और उसकी फ्यूल एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं है। तो मैं उनको पूछा, मैंने कहा तुम्हें जाना कितना होता है? रनिंग कितनी होती है हुँ, जिसके लिए तुम सोच रहे हो? दूसरी बात ये है कि अब जब मैं गाड़ी चेंज करूँगा तो मैं आई वुड गो अपग्रेडेड फॉर अ बेटर कार ऑफ कोर्स, क्योंकि अब मुझे सिर्फ इसलिए नहीं करना कि गाड़ी में कोई मसला है, गाड़ी तो सही चल रही है। मुझे सिर्फ उसको अपग्रेड करना है। जब अपग्रेड करूँगा तो उसकी कॉस्ट क्या है? तो वो जो क कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा था मैं, तो बेयर मिनिमम मुझको 3500 दिरहम का कॉस्ट आएगी मिनिमम उसके मंथली। ऊपर, ऑन टॉप ऑफ व्हाटएवर आई एम पेइंग राइट नाउ। सो 3500 दिरहम की कॉस्ट क्या है? 3500 दिरहम की कॉस्ट है, अगर मैं आज अपनी जॉब छोड़ना चाहता हूँ, तो मेरी पूरी फैमिली की इंश्योरेंस कवर हो सकती है, जस्ट विद दैट अमाउंट फॉर द 5 ईयर्स, फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, क्योंकि 3500 दिरहम की आज मैं गाड़ी लेता हूँ और उसको इंस्टॉलमेंट पे करना शुरू करता हूँ, अगले 5 साल के लिए वो मेरी लायबिलिटी बनती है। उस कॉस्ट को मैं अगर साल पे कन्वर्ट करूँ, हुँ, तो मेरी हुँ, साल की वो भी कम होगी, मतलब अगर वो मेरे ख़्याल से 40,000 दिरहम बनेगी, जबकि इंश्योरेंस आपकी पूरी फैमिली की 20-25,000 दिरहम में आ जाएगी। सो इमेजिन ये मेरी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की कॉस्ट है, मैं गाड़ी अपग्रेड अगर करता हूँ। क्योंकि आज मैं सोचूँ कि मुझे जॉब छोड़नी है, मैं जॉब छोड़ सकता हूँ, लेकिन फिर मुझे खर्चे नज़र आना शुरू होंगे कि अच्छा ये गाड़ी का हुँ, खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा। ये खर्चे मेरे सामने नहीं होंगे अगर मैंने अपने लाइफ़स्टाइल को नीचे रखा होगा। सो बिल्कुल, अगेन इट कम्स टू योर माइंडसेट कि आप एग्रीड। कहाँ पर होते हैं। So can you give some, let's say, mistakes that you see people make while living in Dubai, especially, जो कि आपके सर्कल के अंदर आपको नज़र आता है और उस पे वो रिग्रेट करते हैं, फिर भी नहीं छोड़ते या छोड़ भी देते हैं, तो कौन सी कुछ पॉइंट्स हैं इस तरह के जो मिस्टेक्स हैं? Um, I see again, it could be a mistake from a perspective, like यस। you just mentioned. Like it's हुँ। all a personal perspective, and I'm no one to comment on this क्योंकि मैंने भी वही mistakes की हैं हाँ, वो तो और बंदा अभी भी खुद करते हैं हम सीख रहा लोग। होता है। हाँ। जी बिल्कुल, हम लोग अभी भी करते हैं because before I mention those things, UAE is a very unique country and यहाँ पे आप ना भी चाहें तो आप मिस्टेक कर देते हैं इस तरह हुँ, के because it's a very consumer oriented society and because छोटी country है and it is already ahead of other countries in so many things. हुँ, You have to really, really have a very strong mindset to not be able to spend. Obviously, there's always things happening over here. You know, world level पे concerts हो रहे होते हैं, which you wouldn't find such easy access to other places if you are in that हुँ, circle. If you हुँ, are, if आपका circle है, and I'm in all kinds of circles as well because coming from Pakistan, we have friends from different backgrounds, and we have also done these things. Concerts में जाना है, कौन सा नया restaurant खुला है because this is a melting pot of the world. हुँ, सारे दुनिया के हर cuisine का best version of restaurant you will find here, हुँ, and if you are a foodie, then you are gone. हुँ, So because you आपने try करना होता है, even try करने में या लोगों को try कराने में ही आप अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाता है, हुँ, and again, I'm still not saying that they are mistakes हुँ, because I also do the same thing, but there has to be a balance in everything. हुँ, So what I have learned over time is हर चीज़ बैलेंस में होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने हर कॉन्सर्ट में जाना है या हर रेस्टोरेंट ट्राई करना है या हर जब कोई फ्रेंड्स या गेस्ट आएँ तो आपने ज़रूर बाहर लेके जाना है। यू हैव टू मिक्स ऑफ बोथ। यू हैव टू पहले हम ज़्यादा बाहर जाते थे, अब हम इतना नहीं जाते। एक तो फैमिली के प्रायोरिटीज़ भी क्योंकि बदल बच्चे जाते बड़े हो हैं। जाते हैं तो उनको खुद भी मज़ा नहीं आता, उनकी अपनी राइट। लाइफ़ होती है। तो कुछ एक्सपेंस आपका बच्चों के ऊपर भी जा रहा होता है, तो फिर आप एज़ अ फैमिली भी बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते क्योंकि आपके बच्चे बड़े होते हैं तो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ जाना होता है। हुँ, दैट्स अनदर प्लेस वेयर एज़ अ पार्ट ऑफ टीचिंग माय किड्स द वैल्यू फॉर मनी, हुँ, आई एम it's they might even wonder why I do that because we also go to fancy restaurants, but with my kids, because we have also reduced it, and also with my kids I make them always make a right choice. I tell them, okay, this is the amount you will get. Either you watch a movie with your friends or you go to a restaurant with your friends, or you can have any activity which is something you want to have fun with. So, and like unki birthdays hoti hain, people, this is another example of mistakes which people do कि अच्छा बच्चों की स्कूल में बर्थडेज होनी है तो आप फलाना की बर्थडे यहाँ हुई है तो अब आपके बच्चे ने कहा भाई मेरी भी बर्थडे होनी है। हुँ, सो what value you want to teach them and what is your goal in your financials. मैं ये नहीं कहती कि आप बच्चों की बर्थडे ही ना करें बिकॉज हुँ, अगर लोग कर रहे हैं तो आपने भी कुछ ना कुछ करनी है, बट यू सी what is the best value for money जिसमें आपके बच्चे को खुशी भी हो। मैं आई डोंट बिलीव इन दैट कि बच्चे नहीं हम तो नहीं करते भाई। हुँ, you know so I have made this system with my kids that okay, this year we're going to do birthdays for you guys, next year हम नहीं करेंगे। हुँ, So ओके। उनको वैल्यू भी फील होगी,
मुझे भी हर साल इतना बड़ा एक्सपेंस नहीं उठा सकते. आई हैव 3 किड्स माशाल्लाह and birthday parties are not cheap. There are only a few options and none of the options are cheap unless you do it at your home, which is also something we do. So I have also converted some of these years they don't have birthday parties. I tell them, okay, you know, in Ramadan you can do an iftar party. So call your friends for iftar. So you know there is some value add to it, or call them for Eid. So it's a matter of gathering, right? So what the kids learn is something what you teach them. I teach them that it's a matter of gathering, friends के साथ enjoy करना है, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं. And now that they're reaching like 10, they're between 10 to 14. Sometimes they say themselves, they know, we don't want to do a birthday party. I just want to go out to the mall with my friends. Okay, you give them a certain amount of money, do whatever you want to do, and you know you be around them and things like that. So while I'm, you know, you cannot cut out from the expenses, the living expenses and this quality of life की हम बात करते हैं. फिर आप अपने आप को हर चीज़ से कट ऑफ कर देंगे, देन फिर वो कहाँ बची? आपने घर आके सिर्फ टीवी देखना है या सो जाना है या घर में खाना खाना है. सो येस, वी कैन लिमिट देम, वी कैन मेक देम मोर वैल्यूएबल, we can do more experiences. You know, sometimes they say my brothers and sisters stay abroad. When they come every year, you know, we have moved now from going all the time to restaurants. We say, okay, restaurant से अच्छे कोई experiential चीज़ करते हैं बच्चों के साथ, you know, which children remember, and it may be the same amount of money, but you know, something more valuable. Like we went to a farm where there were animals, so kids really enjoyed that, or do some activity which is like we did. There are these a lot of interesting places in Al Quoz which are not that expensive. You know, kids were playing with the paint. So uh, नहीं it's बिल्कुल about how बिल्कुल सही कह you. रही हैं. मैंने हम लोगों ने हम लोगों को ख्याल नहीं था इस चीज़ पर, लेकिन मेरे फादर, लेट फादर, ही गेव सम मनी टू माय किड्स. जब उनकी डेथ से मेरे ख्याल से 1 साल पहले उन्होंने पैसे दिए 50,000 पाकिस्तान. हम लोग गए हुए थे पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में उन्होंने दिए. तो हमने कहा ठीक है, तुम लोगों के पास ये हैं एंड दिस इज़ द कैश फॉर यू. जब भी तुम लोगों को एक्सपेंड करना हो कर लेना है हमारे पास, लेकिन जिस चीज़ पे भी बोलोगे हम कर देंगे. वो रहे पैसे. फिर एक दफ़ा हम गए इनका स्कूल बैग लेने, तो स्कूल बैग में बच्चों के लिए था कि भाई फुटबॉल का बैग लेना है. तो मैंने कहा ठीक है. अब वो गए वहाँ पर तो 350 दिरहम्स का. मैंने कहा ये तो बिल्कुल बेकार चीज़ है इसमें कोई. Unreasonable. हाँ. Yeah. तो अच्छा, बड़े वाले को तो मसला नहीं था. बड़े वाले को तो उसने वैसे ही कह दिया था कि उसको ज़रूरत नहीं है. लेकिन जो 2 छोटे थे उन्होंने कहा था कि हमें चाहिए यही वाला. मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, तुम्हें मैं ये पैसे तुम्हारे जो ऑलरेडी पैसे रखे हैं वो भी हैं, मैं तुम्हें ये पैसे कैश में दे देता हूँ. और तुम ये बैग तुम्हें लेना है, इन पैसों से तुम अपने हाथ से कैश से ये बैग लो. और अगर तुम्हें कुछ और करना है तो तुम कुछ और कर लेना इसका. तो बड़े जो मिडल वाला था, ही सेड नो, आई डोंट वांट दिस बैग. उसने स्ट्रेट अवे मना कर दिया. उसने पैसे लिए, उसने कहा ठीक The है मेरे moment पास. you give them a choice, you see यस the difference. यस. और उसके बाद छोटे वाले ने बहुत देर तक सोचा. 1 घंटे तक हम मॉल में रहे, जस्ट बिकॉज ही वाज नॉट एबल टू मेक अप हिज माइंड. उसने कहा नहीं, मुझे बैग लेना है. फिर अगले 1 साल तक उसके दिमाग में था कि मैंने ये क्यों ले लिया, क्योंकि मुझे अगर कुछ और लेता, हो सकता है मुझे आईपैड के लिए पैसे जमा करने थे, वो हो जाते. Right. सो और फिर अब क्योंकि वो मेरी वीडियोस भी एडिट करता है, बड़ा वाला बेटा मेरा, तो वो छोटे वालों को भी होता है कि यार इसको पैसे इस तरह से मिल रहे हैं, हमें भी करना है. तो मैंने उन लोगों को अपना मैकबुक दिलाया. तो हमारे घर में कोई एक्सबॉक्स या PS4 इस तरह की कोई चीज़ नहीं है. बट आई मेक श्योर कि जो भी उनको टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी चाहिए, तो मैं आई मेक श्योर कि वो अवेलेबल हो. और फुटबॉल यूट्यूब पे देख रहे होते थे वो लोग, फजूल किस्म के वो व्लॉग्स. मैंने कहा इतना ही टाइम जो तुम लोग ज़ाया कर रहे हो, अब दूसरे लोगों के लिए इतना ही टाइम ज़ाया करवाओ अपनी वीडियोस बनाकर. तो वो लोग अपनी वीडियोस बनाते हैं. सो इट मेक्स फिर वो जब जाहिर सी बात है व्यूज़ आते हैं यूट्यूब पर और बाकी चीज़ें हो रही होती हैं, तो उनको मज़ा आता है. और फिर आप एक जब बहुत सारे कंज्यूमरिज्म तो है ना यहाँ पर, तो बाकी लोग कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हमारे पास PS4 है. तो अब मेरा बेटा खुद मुझे बोलता है, छोटा वाला, सबसे छोटा वाला, कि आई डोंट नीड द PS4. मैं तो यूट्यूब पर वीडियोस बना के मेरे पास टाइम बहुत अच्छा गुजरा होता है. व्हाई डू आई नीड टू प्ले. और फिर अब वो बच्चे भी जो लोग PS4 खेलते थे, उनको भी अंदर से होता है कि यार ये यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं. सो वंस यू मेक योर सर्कल इंटेंशनल, तब चीज़ें चेंज होना शुरू होती हैं. और इट टेक्स बिल्कुल. टाइम. It takes It time. takes time. It took me a long time. हाँ. And whatever I mentioned to you, my experiences, we were also living the Dubai life and लिम्बो में चल रहे थे. बस जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जो आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. And then I think when you have older kids, and I wanted them to not be in that same loop. I wanted to break that loop for them while not taking away the quality of Dubai life from them. So like you said, give them a choice and let them make that choice, and then they value everything that they make, they whatever Right. they do. अच्छा, एंड में एक चीज जो रह गई थी मुझसे बात करना, वो बिकॉज रिटायर्ड लाइफ जो आप कर रहे होते हैं, मैंने ये देखा है दुबई के अंदर, क्योंकि आपको टैक्स फ्री सैलरी मिल रही होती है और इतनी मिल रही होती है जो कि आपको कनाडा यूके वगैरह में नहीं मिल रही. यूएस का एक थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो बनता है, लेकिन कनाडा यूके में नहीं मिल रही होती है. लेकिन वहां पर अगर मिल भी रही होती है तो आपको टैक्स इतना लगता है 60%, 40%, 50%, somewhere in that range.
लोग ये नहीं समझते कि जो पैसे आपको मिल रहे हैं, अगर आप डाउन द लाइन 20 साल 25 साल बाद बोलेंगे कि यूएई ने हमें क्या दिया, तो मैं ये बोलूंगा कि आपको टैक्स फ्री इनकम दी थी, उस टैक्स फ्री इनकम को आपको उसी तरह से इन्वेस्ट करना था जैसे कैनेडियन गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, जिससे आप टैक्स पे कर रहे हैं। जिससे टैक्स पे कर रहे हैं आप। अगर अपने आप को टैक्स करना शुरू कर देंगे आप और उन चीज़ों पे इन्वेस्ट करेंगे जो गवर्नमेंट आपको वहाँ दे रही है, तो ऑटोमेटिकली आप भी यहाँ पर रिटायर हो सकते हैं, जिसके अंदर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है, जिसके अंदर आपकी टर्म लाइफ इंश्योरेंस है, जिसके जो कि मैंने नहीं ली हुई अभी, मैं आपसे बात करता हूँ क्योंकि आपने मुझे बताया था उसके बारे में, जिसके अंदर आपकी कोई एक प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कुछ जो गवर्नमेंट आपको वहाँ प्रोवाइड कर रही है, वो क्या करिए, आपकी जॉब लॉस होती है, आपको पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं, और कितने, वो ज्यादा थोड़ी मिलते हैं आपको, 1 साल के लिए मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा, और वो भी पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। तो आपने क्या इस तरह की कोई सेटअप किया हुआ है कि आपकी इमरजेंसी में इस तरह से आपके पास वो पैसे आना शुरू हो जाए? कनाडा से लोग या वेस्टर्न कंट्रीज से लोग जो इंस्पायर होते हैं वो इन्हीं चीजों की वजह से होते हैं ना, कि सोशल सिक्योरिटी है, लेकिन यहाँ रहते हुए आप सोशल सिक्योरिटी अपनी खुद बना सकते हैं। जैसे आपने कहा, मुझे आपसे ये पूछना है कि आपने जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस ली थी, आपकी लाइफ इंश्योरेंस और इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपीरियंस कैसा रहा है यूएई के अंदर? फिर मैं अपना अगला क्वेश्चन करता हूँ। Okay. So again, insurance is also a slightly complex field for a regular, layman, let's say. But yes, we have had some exposure being in banking. So initially, for me also, when I thought of getting a life insurance, obviously after having kids, everybody starts thinking about their lives. Yes. And then that's when I took initially. पहले मैंने लिया था, I think Noor Takaful से, when I was in Noor Bank, a whole of life plan. So at that stage of my life, it seemed like, oh, I can hit two birds with one stone. कि भाई आप monthly pay कर रहे हैं, it was a pretty decent amount, and you can cover your life. वो भी cover होगी, साथ में investment भी हो रही है, and long term भी सोचना था, तो ये था कि अच्छा long term हो जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, and फलाना खासा कुछ हो गया तो cover हो जाएगा. But that was not a great experience for me. Not because of the brand itself or anything. It's just that eventually I learned that scheme is not. You cannot mix life with investment, and when I needed some money to remove from that portfolio, I had to incur a lot of charges, a lot of costs. Even though I think I had completed 2 years. 2 years तक तो आपका कोई पैसा आपका नहीं होता. वो भी एक इंश्योरेंस की बहुत बड़ी चीज होती है, which is why that whole life insurance की. So उसके बाद से तो मैंने तौबा कर ली कि भाई whole life insurance है, इस तरह की कोई चीज ही नहीं है जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो रही है और सब चीजें हो रही है. Even investment भी I learned over time in my banking career that never do it through the companies. आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लें, क्योंकि वो आपका पैसा आपको नजर आ रहा है. इन्वेस्टमेंट क्योंकि कोई और, चाहे वो बैंक का हो, which is through the bank, or whether it's through direct insurance companies, they have a model, right? How are they going to make money? So they have a business model which is not advantageous to you. Yes, it was a learning for me. I lost a lot of money in that as well when I cancelled that plan. उसके बाद मैंने डिसाइड किया, देखो लाइफ इंश्योरेंस तो करनी है. लिविंग इन अ कंट्री लाइक दिस, बीइंग एन एक्सपैट, यू कांट लीव योर फैमिली जस्ट टेकन केयर ऑफ. सो फिर मैंने टर्म प्लान लिया. इनिशियली मैं टर्म प्लान नहीं लेना चाहती थी क्योंकि ये पैसे तो जा रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं. But then I searched a few plans, and then like I mentioned to you, I always take Islamic. So मैंने सलामा के साथ लिया 2015 में, almost 10 years हो गए हैं. The amount was so small that I said, you know what, even if it is going for no investment, at least it's covering me for the next, it was 25-year plan for the next 25 years. So 2040 में वो plan खत्म होगा, and believe it or not, my payment that I make every month is 208. इतने तो आप पता नहीं चलते, आपने 2-4 चीज ले ली नहीं. It just goes to the company. But from the day that you make your first payment of 208 dirham, जो मेरा था, I am covered for life, as in death, by 1 million dirham. So for me, it was not a bad idea, at least to start with something. So I thought to myself कि investment बाद में कर लेंगे, करते रहेंगे, कुछ और सोच लेंगे. और फिर मैंने investments की भी different चीजों में, try out किया. एक बार में pounds जा रहा था नीचे, pound भी खरीदे, वो भी बेचे, थोड़े पैसे बने, लेकिन it was none of that was really big investments. But gold भी कभी ले लेती हूँ, कुछ छोटे-मोटे बार. So I am a rather safe investor, being a banker. But this term life ये खुद ब खुद करता रहता है. And मुझे कभी-कभार एक आध दफा मुझे वो भी मिला है, सरप्लस. हाँ, सरप्लस बोनस भी 400 dirham में कुछ, मतलब over the last I think 10 years एक आध दफा हुआ है. So the company is good, Salama is renowned and reliable. इस 1 million cover के साथ additionally also in this 200 dirhams I get accidental death, which is 500,000, and a critical illness amount benefit, which is 250,000. So all of this is
together, not exclusive of each other. They're exclusive of each other, not together. So 1 million अगर death हो खुदा ना खास्ता for any वो natural अलग है। causes, अगर accident की वजह से death हो तो 1 million तो मिलेगा, 500,000 भी मिलेगा, because a road accident or any accident, of course, barring adventure sports and alcohol, drugs, and those kind of accidents. There are exclusions, of course, which are very natural, suicide related. And then critical illness. In fact, I was going through the plan before coming to this. I realized I should have taken a little bit more because उस ज़माने में लग रहा था 250,000 काफी, आज के ज़माने में 250,000 is not enough for some illness which is like blindness or deafness or limbs related that you can never work after this. So उसके अंदर भी ये है कि they give you 250 upfront, which is in addition to your existing cover. But ये है कि it's still something I'm glad that I did. नहीं बिल्कुल आपने सही किया। मैंने नहीं ली अभी तक और इसका रीज़न ये है कि मैंने उस पर काम ही नहीं किया बिल्कुल। हालांकि ये मैं खुद बोलता रहता हूँ कि इम्पोर्टेंट है और इसका एक रीज़न ये भी है कि यूएई के अंदर उसका उतना एजुकेशन भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स की एजुकेशन है और बहुत सारी चीज़ों की एजुकेशन है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहरोज से मेरी बात हो रही थी उस दिन, तो कह रहा था कि यार मुझे कोई बताओ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्यूरीज आती हैं इस तरह की, लेकिन कोई एजुकेशन नहीं है इस तरह की जो कि लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड हो। अच्छा, इसके अंदर जो आपने बात की थी ना कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स अलग अलग होनी चाहिए, और जिससे मैंने बात की है उसका यही पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन होता क्या है कि एक तो ये कि जो लोग आपको ये सेल करते हैं उनके ज़्यादा कमीशन मिलता है, उनको कमीशन मिलता है, इंसेंटिव्स होते हैं उनके, और उनके इंसेंटिव छोटे मोटे नहीं होते। आपकी 2 साल की तो कॉस्ट उसी में जा रही होती है उनकी कमीशन के अंदर, चाहे वो एजेंट हो चाहे वो टोटल कंपनी हो। कभी कभी 5 साल की जा रही होती है टोटल जो। तो इसीलिए जब आप उसको अर्ली विड्रॉ करेंगे तो उसमें नुकसान होगा आपका, क्योंकि वो सारी फीस वगैरह जो होगी कमीशन की वो तो आपको पे करनी होगी। इसी वजह से आपको इंश्योरेंस अलग रखनी चाहिए। और 200 दिरहम आई थिंक फॉर 1 मिलियन इज गुड इनफ कि आप उसको एक कवर होगा ना आपका। जैसे लेट्स से कनाडा के अंदर या किसी भी मुल्क के अंदर अल्लाह ना करे किसी के साथ कुछ होता है तो ही नोज कि गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ द किड्स और सिस्टम होगा। यहाँ पर अगर आप करते हैं तो आपको एटलीस्ट आपको पता होगा कि पैसे आ जाएंगे और फिर उनसे जो भी फंडिंग करनी होगी आप वो कर सकते हैं। सो ये कवर आप खुद बना सकते हैं, इसमें कोई इतना वो प्रॉब्लम है नहीं। तो अगर आप एक रेगुलर वे में चलें तो ऑटोमेटिकली आपकी चीजें जो हैं यहाँ पर सॉर्ट आउट हो सकती हैं। Yeah, sure. And this is in 2015. Maybe I don't know. Aaj maybe there are better products, or you can get a better cover. I'm not sure how the market is moving in the insurance sector. Yeah, we can definitely. I can connect you with people as well from the insurance. Yeah, मुझे बिल्कुल बात करनी है। चले फरिया, it's been an insightful conversation for me. मेरे ख्याल से हम 1 घंटे से ऊपर चले गए। So I hope कि आपको भी इसमें you feel at ease here। और जो हमारा इंटरेक्शन था नेशनल बॉन्ड वो जो इवेंट था वो भी बहुत ज़बरदस्त था। So I would love to have another collaboration with the National yes, Bond we are team. definitely working on that. Okay. Yeah, and then we should have a separate one for national bonds, inshallah. बिल्कुल। But no, thank you very much. I think more than me sharing my stories, insights, I have also personally learned a lot because, like I mentioned, I'm a safe investor. But now I'm treading on a path where I want to make, build my wealth as well. नहीं, I think it's easy, but it takes time to understand कि होना क्या है। Right. जब एक दफा आपको समझ में आ जाता है फिर आप और माइंडसेट बन जाता है, फिर आपको होता है कि अच्छा ये जो मैं कर रहा हूँ, you should understand what you're doing। अगर वो आपके एम्बिग्यूटी रहेगी ना, फिर आपको जाना ही नहीं चाहिए उस चीज के अंदर। बिल्कुल, I should never be without thinking. Yes. चलें, thank you very much। Thank you very much. Thank you।